first we are covering a little bit about Indian architecture also. So I have included certain number of people into that. Let's go for that first. So there are some famous architects. I have just included few people here. Achyut Kevinde is one, University of Agriculture Science. So that's how the building look like. It's a Bangalore-based organization. So that's one of the image I was able to collect it. Then Hari Vallabh Das House in Ahmedabad, same guy. So that's another building. Since it was quite old building, so you may not feel very great architecture, but according to Indian context, in those time when he designed it, it was considered as an important building. Similarly, going to Dudhsagar Dairy, Mehsana, again, same guy. So this is another building over there. Then moving to the National Insurance Academy, Pune, same guy. We could see the different architecture in terms of space, organized, not a big building, but it is much more of a smaller size building, just ground first and second floor only. So not a modern architecture that way, but still in Indian context. Again, the P.K. Kellar Library, IIT Bombay, IIT Kanpur, sorry. So ISKCON Temple, Delhi. The Nanshan Science Center, very, very important organization. If you come to Delhi sometime, this is near the Pragati Maidan, and next to the Pragati Maidan, you see very often people going over here. So it's a very amazing building. You must go and visit it sometime just for the journalist's sake. Very interestingly designed from outside. It stands out of its own. So you could see this is a different view of the same building. So how it is being designed is also an interesting thing. So National Dairy Development Board office. These are the low resolution images, but somehow not been. So this is another building by the same guy. Then IIT Kanpur campus. So this is the building for your reference. So that's one architect in Indian context. Then we move to B.V. Doshi. He is one of the most important men living in today's time. As I said, that there's a prize called Prix Prize for the. It's called as a Nobel Prize of the architecture from India. हिंदुस्तान में दो लोगों को आज तक मिला है, B.V. दोशी को और चार्ल्स कुरिया को. तो दो लोगों को आज तक हिंदुस्तान में मिला है ये प्राइज और किसी आदमी को नहीं मिला. So B.V. Doshi is one of the important architect. So this is another building which is from outside. It looked more interesting and then from inside, but again it is called Ahmedabad Ni Gufa. Ahmedabad. It must be in different language, but this is the Gufa of Ahmedabad. People somehow call it. Then Indian Institute of Management, Bangalore. This is the building which he has designed. Then low cost housing development, Aranya low cost housing development. So there's another small scale kind of a building, which look very ordinary, but if you look at to the design point of view, you might find it interesting. Then CEPT University. So this is another important architecture. National Institute of Fashion Technology, NIFT, we call it in Delhi. NIFT is also being designed by the same guy. IIM Udaipur, another very interesting design by the same guy. This is how the architect look like. So this is another building. Another one which is not mentioned here somehow is India Habitat Center. It's being designed by three people basically. He and Steiner and Bhalla. There are three people who has designed that building. So India Habitat Center is basically three people. So Doshi, Steiner, and that Bhalla guy. Charles Korea also. We have a couple of more buildings. Here the photograph is not there for some reason. Islamic Center Canada is a very interesting architecture. If you look into the images of this, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. So you could feel the design feel in terms of an international building which is designed abroad, because you also need a space for something to design. It is not just the building, but it is also the space required to design the building. So in the night, you could see this thing. So again, very important building by Charles Correa. And Jawahar Kala Kendra Jaipur is very well known. If in the examination, if the question would be formulated, it will be about the Jawahar Kala Kendra, because this color scheme and the look and the space of this particular film is very renowned. Many people talk about this particular building. If you go to sometime, then this particular building, people do go and visit. It is also a tourist attraction nowadays. So this Jawahar Kala Kendra is the most, I would say, expected question if the Charles Correa need to be asked. Sir, which award was conferred to Charles Correa and D.V. Joshi? Pritz, P-R-I-T-Z, Pritz Award. Pritz Award, okay. It's called Pritz or Pritz, something like that. It's a very prestigious award. It's considered as a Nobel Prize for literature. हिंदुस्तान में 2 लोगों को आज तक मिला है बस. और ये सब एंडो फेंडो, ये जो इंटरनेशनल लोग हैं, ये सब प्रिट्स प्राइज, पियानो वियानो, ये सब लोग, जहां दीदी, ये सब लोगों को मिल चुका है वो अवार्ड. Is the most is a kind of a Oscar, or you could say Nobel Prize for the architecture. जवाहर कला केंद्र की बात हो गई. मध्य प्रदेश के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली, मध्य प्रदेश में एक और बिल्डिंग है जो मैंने शायद यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है, वो गूगल में चेक करिएगा आप. वहां पर एक सेंटर बना है अभी, जिसका नाम है, क्या बोलते हैं, ट्राइबल म्यूजियम. ट्राइबल म्यूजियम किसने डिजाइन किया है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछले 10 साल से ट्राइबल म्यूजियम इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट प्लेस ऑफ द भोपाल. तो दिल्ली की लेडी है वो, अब इतना काम मैं करूंगा, सब कुछ नहीं करके दूंगा, खुद जो है सर फोड़ोगे थोड़ा सा. आधा काम कर देता हूं मैं, आधा काम नहीं करूंगा. आधा काम उन लोगों के लिए छोड़ देता हूं जो मेहनती हैं, जो सो रहे हैं यहाँ पे चुपचाप बैठ के आके, उन लोगों के लिए नहीं बना है. आधा काम मैंने कर दिया, आधा आप खुद करो. चार्ल्स कोरिया का मध्य प्रदेश में असेंबली, एमएलए असेंबली जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ही हैज डिजाइन दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग. बट इफ आई वुड फॉर्मुलेट ए क्वेश्चन, आई वुड फॉर्मुलेट अबाउट द क्वेश्चन ऑन ट्राइबल म्यूजियम ऑफ भोपाल. हु डिजाइन द ट्राइबल म्यूजियम ऑफ भोपाल? कला अकेडमी. ये कला अकेडमी जो है गोवा के अंदर है. जो गोवा फिल्म फेस्टिवल कभी देखने गए होंगे तो वहां पर, यहाँ पर फेस्टिवल भी होता है, ये पास में ही है, वहां पर आइनॉक्स बिल्डिंग के अंदर, जहाँ पे गोवा एंटरटेनमेंट सेंटर है, उसी के पास ये बिल्डिंग है. तो यहाँ पर कला अकेडमी के अंदर जो है, क्या बोलते हैं, ओनली 1 image is there, but it's quite a huge 6-7 more images are there which this person has not loaded. But anyway, you remember this place, Kala Academy, Goa, another very important building of the Goa itself. British Council, Delhi, very very important building which could be asked in the examination. Who designed the British Council, Delhi? British Council, Delhi जो है बहुत important building है, चार्ल्स कोरिया का. पूछा जा सकता है. महात्मा गांधी मेमोरियल, अगेन चार्ल्स कोरिया. इमेज यहाँ पर नहीं है किसी वजह से. महात्मा गांधी मेमोरियल का अगर इमेज है तो लेट मी जस्ट चेक, होनी चाहिए. ओके, दिस इज द वन. नॉट ए बिग बिल्डिंग, बट मे बी अ स्मॉल बट मोर स्पेशियस in terms of the environment friendly, and how it is being designed is also, this is small kind of a top angle view. So that's Charles Correa. Again, coming to another gentleman, गणेश विकाजी दियोलकर. 2 ही मैंने यहाँ पे देख पाया हूँ, ज्यादा जो है मुझे नहीं मिल पाया. नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, 2 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है इसकी, और दोनों ही खतरनाक बिल्डिंग है. कभी दिल्ली में आओगे, जो लोग दिल्ली में इस रोड से गुजरे हैं, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर, पूछा जा सकता है. और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हर एक को पता है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिजाइन्ड बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ द स्पेस एंड ऑल दैट. सो दैट्स, इसका छोटा नाम भी ध्यान रखना है, कई बार इतना लंबा चौड़ा नाम नहीं पूछते हैं लोग. जीबी दियोलिकर भी बोल सकते हैं लोग, पूरा नाम अगर पता हो तो अच्छा रहता है. हाँ जी. हबीब रहमान. हबीब रहमान का नाम मुझे इसलिए मालूम है बिकॉज ही वाज मैरिड टू इंद्रानी रहमान, एंड his son is Ram Rahman, is a photographer, but he himself is big. They are known because of him only. Habib Rahman has designed the Ravindra Bhavan, मंडी हाउस के पास एक जगह है जहाँ संगीत आर्ट अकेडमी, ललित अकेडमी, वो तीनों बिल्डिंग जो है एक ही फ्लोर के अंदर है. तो दिस इज अ बिल्डिंग डिजाइन बाय हबीब रहमान. गांधी घाट का जो है डिजाइन भी अगेन रही रहमान का. ये गांधी वो वाला नहीं है पीस म्यूजियम, ये जो राजघाट जो है, राजघाट अलग चीज है, वो अलग चीज है. तो दैट्स अनदर थिंग. लॉरी बेकर का नाम भी जो है, हफीज कॉन्ट्रैक्टर का एक बिल्डिंग जो 42 कलकत्ता का सबसे लंबा चौड़ा बिल्डिंग है, ये इज बीइंग
चार्ल्स कोरिया ने बहुत डिजाइन किया हुआ है, बट आई जस्ट कुड पिक अप वन फेमस बिल्डिंग, बट ही हैज डिजाइन मेनली फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर्स. आधा गुड़गांव का जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, वो जहाज वाला बिल्डिंग है, वो अगेन ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर का डिजाइन किया हुआ है. एक बार टाइम में मैंने कुछ शूट किया था, कुछ कमर्शियल जो है, so we shot all the building designed by Hafiz contractor. So around 7-8 buildings in the Gurgaon is being designed by him. एक वो शिप की शेप का एक बिल्डिंग है, वो भी हफीज का ही है. लॉरी बेकर अगेन CDS त्रिवेंद्रपुरम. लो कॉस्ट डिजाइनिंग में इसका नाम ज्यादा फेमस है. इंडियन कॉफी हाउस अगेन सेम प्लेस. We could see little tilted, छोटा बिल्डिंग है, but again sometimes small building also become famous. और एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी राज रेवाल. His son is Manu Rewal, who is a filmmaker, but not so many people knows because he hasn't done a big film. But his father is a renowned architect, Raj Rewal. राज रेवाल का एक किताब भी आता है मार्केट में, अगर आप देखेंगे तो पता लग जाएगा. NTPC टावर ही हैज डिजाइन्ड इट. इंडिया के बाहर भी काफी काम किया है उस आदमी ने. कोल इंडिया कॉम्प्लेक्स. You could see the design of this building. पार्लियामेंट का लाइब्रेरी जो है, राज रेवाल का डिजाइन किया हुआ है. फिर एशियन गेम विलेज, ही बिकेम मोर फेमस बिकॉज एशियन गेम वाज वेरी टॉक्ड अबाउट इवेंट. So Asian Game Village is being designed by him. Then State Trading Corporation. अगर आप कभी दिल्ली में ये बिल्डिंग देखा हो आपने, तो आपको आसानी से जो है पता लग जाएगा. It's a very renowned building. हॉल ऑफ नेशंस का जो बिल्डिंग है, अगेन इज बीइंग डिजाइन बाय राज रेवाल. ये समझ आ रहा है कहां पर है ये हॉल ऑफ नेशंस? प्रगति मैदान के अंदर ये बिल्डिंग लोकेटेड है. अभी डिमोलिश हो चुका है ये बिल्डिंग, क्योंकि वहां नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है. तो प्रगति मैदान की वजह से ये बिल्डिंग ज्यादा पॉपुलर है, और इसका डिजाइन भी थोड़ा सा डिफरेंट है. तो दैट्स हाउ पीपल वी हैव यूज्ड दिस पर्टिकुलर बैकग्राउंड टू शूट सम पोर्टफोलियो ऑफ सम एक्टिंग स्टूडेंट्स. So that's Raj Rewal. Oh, sorry. Yeah. So these are the various architects. कुछ और भी हैं जो हम लोग कवर नहीं कर पाए हैं इसके अंदर, but I have just covered the main people who could be asked. वीवी दोषी सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है इसके अंदर. और इंडिया हैबिटेट सेंटर का बिल्डिंग, स्टाइन ऑडिटोरियम भी है, वहाँ स्टाइन लेन भी है. कभी आप IIC जाएंगे तो वहाँ पे एक स्टाइन उसी के नाम के ऊपर जो है तो रखा गया है. तो इन लोगों का एक कंबाइंड कंपनी है वीवी दोषी, और उसका स्टाइन प्लस दिस भल्ला गाय. And that's it. So again, in the painting section, I have included one more painter today, which I would be talking about. It's called Marshall. No. It's wait. Ranwa. Wait 1 second. देख लूं यहाँ पर 3-4 लोगों का नाम ऐड किया है, तो उसमें कौन से वाला हमको करना है वो देखा हूँ मैं बस. इसमें एक मिनट. Hopper, Edward Hopper. Okay. So Edward Hopper is one of the renowned painter, and his painting has a one particular style. जैसा कि मैंने बताया, टिस्चन और टेस्चन कोई अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं. TASCHEN. टेस्चन ने 75 इंटरनेशनल पेंटर्स के ऊपर किताब छापा हुआ है, और 25 ऐसे लोग हैं जिसके ऊपर किताब नहीं छापा, वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है. तो करीब करीब 100 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पेंटर हैं, जिसके अंदर एडवर्ड हॉपर का नाम भी आता है. तो हम लोगों ने करीब करीब 25 इसकी इंपॉर्टेंट पेंटिंग जो है यहाँ पर इंक्लूड की हुई है. तो नाइट विंडो इज वन ऑफ द फेमस पेंटिंग बाय दिस गाय. सो दिस इज हाउ दिस पेंटिंग लुक लाइक. You could see the darkness, and from inside some ladies being seen, and 3 windows. Then there's a New York office, and this is the image of the New York office. Then New York movie is a movie cinema hall. ये गलत वो डाल दिया है पेंटिंग इन लोगों ने, ये वाला नहीं है इसका पेंटिंग. लेट मी जस्ट राइट डाउन. अब यही होता है कि छोड़ दो किसी ऊपर तो गड़बड़ कर देते हैं लोग. न्यूयॉर्क मूवी हॉल का पेंटिंग है, ये गलत पेंटिंग है, इसको करेक्ट करना है मुझे. तो न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड, ये दिस इज द करेक्ट वन फॉर दिस वन.
Then morning sun का जो painting है, again you could see sunlight, patch of sunlight coming and this lady is sitting and looking outside. इसके ऊपर एक छोटा सा फिल्म भी बनाया किसी ने एनिमेशन टाइप का, वो मैं आपको लिंक भेजूंगा, उसको देखेंगे तो सारी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स को किस तरीके से रिक्रिएट किया है उसने, छोटा सा ट्रेलर मैं आपको उसको भेजूंगा उसका. मॉर्निंग इन ए सिटी, again is a nude painting, but again the source of light is very important. How the source light coming from the window is important, and you could see the same light falling on the wall. Hanji. Manhattan Bridge loop. So this is the painting of that. Lighthouse Hill. लाइट हाउस के ऊपर जितनी भी पेंटिंग है, इसमें काफी पेंटिंग जो है स्टैम्प्स के अंदर इस्तेमाल की गई हैं. वो भी लोडेड नहीं है यहाँ पर, बट आई वुड लोड एट सम पॉइंट. इफ यू लुक इनटू द स्टैम्प्स ऑफ एडवर्ड हॉपर, यू 6-7 पेंटिंग जो है आपको उसमें, किसी भी आदमी की पेंटिंग इंपॉर्टेंट है कैसे पता लगता है, उसके ऊपर किसी ना कहीं किसी ना किसी कंट्री में स्टैम्प रिलीज हुआ होता है. स्टैम्प रिलीज एक बहुत बड़ी बात होती है किसी पेंटिंग को यूज करके. दैट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पेंटिंग. हाँ जी, इंटरमिशन. So this you can see the cinema hall side on the right side, and one lady is just waiting, and that's it. Hotel by Railroad. So you could see this another painting. Hill and House. So everybody has made his own style. High Noon. You see the top lighting source. How do you know it is high noon? Because of the source of the light. Lighting is the top, that's why the shadow is going down. Groundswell again is a kind of this is the only painting in which you get to see the sea and boat and other thing. Girly Show, again a nude walking on the, it's some kind of theater where the show is happening, or maybe at least he has designed that thing. Girl at the Swing Machine, another interesting painting, very prominent red color. Gas is a gas station basically, so you could see these gas station. El Palacio. Four-lane road. Another interesting painting. Early Sunday morning. Very often you get to see this painting when you talk about the top 10 paintings of Edward Hopper. Then Drug Store. So Conference at Night. Coburn's South. Coastal Guard stations. Chair car is very famous painting. This is also being used in the same short film which I talked about. American Village. Compartment car. Is the same painting which I have used on the thumbnail also. So you could see that this is also a famous painting. That's why I decided to use it as a thumbnail. Anji. Night Talks. Again, very often you see this particular painting. Whenever there is a cover of or any, if I need to choose one painting, then this would be the painting which is talked about among the most famous painting of this guy, Edward Hopper. Night Window. Again, the same window which we had to use it earlier, but that's a different thing, and this is a different thing. Hotel Lobby. Again, a well-known painting by the same guy.
Christina's World, again a very famous painting. Very often you get to see this painting, and some people have used this idea also into their design. The advantage of viewing these paintings is that you get inspired for their compositions in terms of the selection of the subject and other thing. So that's another pose which I think Wim Wenders has used in one of his films. Chop Suey is also very well-known painting. Very often you get to see this image. Cape Cod Evening. This is a close-up of, there's a long shot of the same also. Let me just see if there is, yeah, no, there is no, they have not loaded the long shot, but there's a long shot of the same thing also. Cape Cod Morning, again a different painting. But again, this is also very often people have used into whenever they talk about top 10. So evening, morning, we have seen this. Automat is also a famous painting by the same guy. Very often I have seen this painting. Why they call it as a automat? One has to do the research. There are some websites which talk about all these painting in detail. So I would shoot you the link of that particular site where you could go and click on the individual painting and see. See, in 10 days, everything can't happen. It is a time when you have a lot of time, you should have done all these things. But anyway, whatever can be done in these limited time, we are trying to do it. So Automat is done. Room in the New York. Again, this is also, when you will see this small film, you will also get to New York. Ho gaya. Office at Night is also important painting. Office in a small city is also very interesting image. How in a top area, the sunlight is being lit from the side and all that. So these are the basic paintings by this guy. So I have covered one particular painter and some architect. Tomorrow I am going to load some top 10 painting of the Picasso and this another guy called Marc Chagall. Marc Chagall is also well-known, little abstract painter from top 100 painters list. So this is in brief. I would switch now to the video which we could not finish. There are many more painters also, so I can't say which one to be covered and not. You really have to work by yourself. So let me just go to the MCQ part, which we covered till last time. It was 49. We'll finish this and then I have 1 or 2 more videos which we will be. See, all these things you need to revive. If you can't, it is not going to happen. Okay. So there is nothing new to speak for me. Whenever there is a new, I just start with that and then we'll move to this one. So this is some 20 minutes are still left or 10 minutes are still left in this one. And then we'll begin the another one. और अभी मैं थोड़ा सा ये इसमें और भी है बिना कलर वाले जो है इसमें थोड़ा एक कर्सरी लुक कह लो या कुछ भी कह लो वो भी थोड़ा मार्क करते जाते हैं कम से कम नंबर मार्क कर लो 1981 मेफिस्टो इस्तमंजाबो आप लोग जो भी क्वेश्चन होगा उसको लिख लीजिएगा बीच में जब हम चेंज करेंगे देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन बीच में मत बोलिएगा क्योंकि डिस्टर्ब होता है फ्लो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फिल्म है मैन ऑफ आयरन आंद्रे वाज द इंपॉर्टेंट फिल्म है उसके बाद 1982 में आ जाइए जॉन ट्रोल का फिर दोबारा से फ्लाइट ऑफ ईगल ये वही अंकल जी हैं जो एफटीआई आए थे एक बार घूमते हुए फैनी अलेक्जेंडर बिरर स्वीडन 1983 उसके बाद कार्मेन कार्लो सोरा का एक इंपॉर्टेंट फिल्म है कार्लो का जो सिनेमेटोग्राफर है वो विटोरियो सोरारो है इस फिल्म के अंदर खास बात यह है कि बहुत सारे पटांग के मिरर लगे हुए हैं मिरर के अंदर शूट होता है पागल हो जाए आदमी फ्लाइट काटते काटते खतरनाक फिल्म है ये फ्लेमेंको के ऊपर तो कार्मेन कार्लो सोरा का फिल्म है जो इंपॉर्टेंट है और जो ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेटेड है वहां पर उस कंट्री से उसके बाद 1984 छोड़ दो 1985 कर्नल रेड्डी अगेन इस्तमंजाबो इंपॉर्टेंट है ये अमीर कुश्ट्रीका जो यूगोस्लाविया का डायरेक्टर है ये इसकी कुछ फिल्में हैं जो लोगों को पता है तो कुछ किस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा वो सोचना पड़ेगा बट इसको फिर भी मार्क कर लो व्हेन फादर वाज अवे ऑन बिजनेस मार्क कर लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी मार्क कर लो पता होना चाहिए थोड़ा आइडिया लेवल पे
हाँ जी, अभी और देखते हैं कुछ 1980 बेबलेट फीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म। 1987 गैब्रियल एक्स का फिल्म है। एक छोटे से गांव के अंदर एक खाना वाना बनाने के ऊपर खेल है। हाँ जी, विनर है ये गैब्रियल एक्सेल का फिल्म डेनमार्क से, इज अ विनर इन 1987। लुई माल दोबारा से आ जाता है, गुड बाय चिल्ड्रन, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। ओ जाफो और अवला जाफो करके जो फिल्म है गुड बाय चिल्ड्रन लुई माल का, दिस अगेन एंट्री फ्रॉम फ्रांस, अनदर इंपॉर्टेंट फिल्म। पहले द कंक्वायर भी इंपॉर्टेंट फिल्म है बिली एगस्ट का, डेनमार्क से, और विनर भी है उस साल का। उसके बाद हनुसेन स्टवन जाबो का भी इंपॉर्टेंट फिल्म है। सलाम बॉम्बे भी उस साल नॉमिनेटेड थी जिस साल पहले द कंक्वायर को ऑस्कर विनर था। ये क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें इंडियन कनेक्शन है, इसलिए तुमको पता होना चाहिए कि सलाम बॉम्बे was nominated for Best Foreign Language among other films। among में क्या है, ये बाकी ये 4 फिल्म है, हनुसैन म्यूजिक टीचर, वुमेन ऑन द वर्ज ऑफ नेवर ब्रेकडाउन भी इंपॉर्टेंट है पेट्रोल मधुआर का, बट विनर जो है पहले द कंक्वायर है। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों नाम जो है याद होने चाहिए, क्योंकि सलाम बॉम्बे उस साल इंडिया की फिल्म बहुत सालों के बाद आराम करने के बाद एक बार इन लोगों को एंट्री मिली। ठीक है, तो ये 5 नाम जो है याद होने चाहिए, क्योंकि उस साल और कौन कौन से लोग थे, ईयर भी कोशिश करो याद रखने का अगर रख पाओ। ठीक है, सिनेमा पारादीसो इज द विनर, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म। गुसिप जी तारनातोरे, ये 1989 का विनर फिल्म है। उसके बाद कैमिल क्लोदेल, जो हमने कहीं क्वेश्चन में भी डाला हुआ है, उन्होंने वाला फिल्म उस साल ये भी फ्रांस का ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड थी। ये दूसरी फिल्म इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नीचे आ जाइए, सायरानो द बरसात, ये जॉन पॉल रिपांडू का फिल्म है। इसमें वही आदमी है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अमिताभ बच्चन और फ्रांस के नाम से जिसको लोग जानते हैं, जीरों डिपार्ड्यू। मैंने बताया था आपको वहां पे, ये जीरो डिपार्ड्यू था इसमें सायरानो के अंदर। उसकी नाक जो है लंबी सी होती है, उस पूरी फिल्म में बड़ा खेल है थोड़ा सा इस चीज को लेके। और उसका नोज जो है एक बहुत लंबी सी नोज होती है, उसकी वजह से कोई लड़की उसको पसंद नहीं करती है, उसको एक लड़की से प्रेम हो जाता है, तो प्रेम कथा चलती है, ऐसे कुछ कहानी। हाँ जी, नीचे चले कुछ। इसमें यांग यू चाइना का ये फिल्म, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कौन सा फिल्म है, जू डॉक, और वो नॉमिनेटेड यहाँ लिखी हुई है, ये क्या चक्कर है मुझे समझना पड़ेगा। बट अगर ये फिल्म कोई है तो ये इंपॉर्टेंट आदमी है चाइना का। इसकी और भी फिल्में हैं, हीरो है, हाउस ऑफ फ्लाइंग डैगर है। 1991 चिल्ड्रन ऑफ नेचर एलिमेंट्री स्कूल, वॉक्स, स्वैन निक्विस्ट ने भी कुछ बनाया था। हांगकांग, रेज द रेड लैंटर्न, ये इंपॉर्टेंट फिल्म है, रेज द रेड लैंटर्न 1991। उसके बाद नीचे आ जाइए थोड़ा सा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं है। वेलफेयर बाय कॉन्क्यूबाइन, ये भी एक इंपॉर्टेंट फिल्म है, चैन केक का, हांगकांग। पूछा जा सकता है, पता होना नितांत आवश्यक है। 1994 बर्न्ड बाय द सन, निकिता मिखाइलोव। मैंने अपनी जिंदगी में 2 लोगों से ऑटोग्राफ लिए हैं, एक याद। बड़ी खतरनाक फिल्म है। डायरेक्शन के जो स्टूडेंट है, इसका एक स्टेटमेंट के ऊपर एलोब्रेशन आ सकता है, वो स्टेटमेंट मैं एग्जैक्टली बताऊंगा देखकर क्या स्टेटमेंट है। वो कोई बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, उसके ऊपर एलोब्रेशन पूछा जा सकता है। बर्न्ड बाय द सन जो है हिंदुस्तान में भी दिखाई गई थी, ही केम टू इंडिया आल्सो, ही हैज कम टू इंडिया ट्वाइस। और उसके बाद 1995 में आ जाते हैं हम लोग, और इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। 1996 कोलिया भी कह सकते हो इंपॉर्टेंट फिल्म है, चेक रिपब्लिक का फिल्म है। शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर की फिल्म में जो चेकमेट में इंटरव्यूज हैं, वो इस डायरेक्टर का भी इंपॉर्टेंट है, जैन सोवरिक का। इसके बाद और कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे नीचे, और यहाँ पर जाकर खेल जो है बढ़ाया जाता है। लाइफ इज ब्यूटीफुल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म 1998, रॉबर्टो बेनिनी जो कि एक्टर भी है और डायरेक्टर भी है। ये फिल्म के बारे में पूछा जा सकता है, कुछ 7-8 ऑस्कर थे इस फिल्म को लेके। उसके बाद टैंगो भी एक इंपॉर्टेंट फिल्म है, अगेन सेम गाय, कार्लोस सोरा, फ्लेमेंको वाला आदमी। पेड्रो अल्मोदोवार, ऑल अबाउट माय मदर इज आल्सो इंपॉर्टेंट फिल्म।
क्राउचिंग टाइगर सबों को पता ही होगा, रिलीज हुई है हिंदुस्तान में भी। नो मैन्स लैंड भी सबों को पता होगा, क्योंकि उस साल जो है कोई इंडियन लगान फगान टाइप फिल्म भी थी, वहां पर लगान ही थी। चलो, तो ये भी थोड़ा सा रट लो तोते की तरह कि नो मैन्स लैंड उस साल विनर थी, और मैंने 10,000 रुपए जीते थे उस साल शर्त लगा के किसी से। उसका कहना ये था कि लगान जीतेगी। सेंटिमेंटल हो जाते हैं लोग, इंडियन लोग, बियर पी के, मैम पी के बियर, मैडम नहीं, ये नहीं जीतेगी। सर मोरस मैरिज कौन सी कहाँ पर 2000 का है ये रही। एक मिनट, हाँ हमारा ये भी इम्पोर्टेंट है, गोंजालेस नार्तू, ये भी लिख लो, मार्क करो इसको, ये भी मार्क करो इसको, ये भी इम्पोर्टेंट फिल्म है। उसके बाद आंख से निकल गई मेरे वो उस टाइगर के चक्कर में, क्राउचिंग टाइगर के चक्कर में। एमिली भी इम्पोर्टेंट फिल्म है, जो पीएल जुनैद का, एमिली का जो एडिटर है वो एफटीआई में 2 हफ्ते की वर्कशॉप करने आया था, तो 3 दिन हम उसको यहाँ भी घुमाने के लिए लेके आए। बनारस जाने से पहले हमने कहा दिल्ली जाना हो जरूरी होता है, 2-3 दिन यहाँ भी रुको। उसके बाद नोवेयर इन द अफ्रीका भी इम्पोर्टेंट फिल्म है, बट हीरो जो है खतरनाक फिल्म है, हर आदमी को देखनी चाहिए। जैंग यिमू 2002 का फिल्म है। ये 2 नाम आकी क्रुसमाकी एंड मीका क्रुसमाकी ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं, फिनलैंड से। ब्रदर वाली जो लोग हैं उसमें से ये भी है, कोहान ब्रदर है, एक क्रुसमाकी ब्रदर्स है, ऐसे एक और फ्रेंच नाम है जो ब्रदर्स में जाना जाता है। वो कोहेन ब्रदर्स, वो अमेरिकन लोग हैं। एक फ्रेंच भी है जो ब्रदर्स हैं अपने आप में, को याद आ जाएगा मुझे, बता दूंगा। ये भी फिनलैंड के लोग हैं जो ब्रदर्स, तो ब्रदर 2-3 ब्रदरों को इकट्ठा कर दिया तो एक आधा क्वेश्चन उस पर भी बन सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ तक जो है हम लोगों ने कवर कर लिया। जल्दी से कुछ पूछना है तो पूछ डालो, नहीं पूछना तो मत। ये रश थ्रू नहीं है, बट क्या है कि सब लोग अपने आप में इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर कोई फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो रही है तो इम्पोर्टेंट है वो, बट क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पर कोई क्विज नहीं चल रही है कि बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज ऑस्कर की क्विज बन रही है, क्विज नहीं बन रही है। ये उन लोगों से जो सिनेमा के छात्र होने जा रहे हैं जीवन में, उनको कुछ मोटा मोटा मलाई लेवल पे पता है कि तो क्विज बनेगी तो उसमें कुछ भी उठपटांग आ सकता है। दिस इज नॉट ए क्विज, दिस इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज ऑस्कर। ओके, तो ये हो गया सर दोस्तों, तो कल फिर मिलते हैं। So we had covered most of the important section of the best foreign language Oscar, best foreign language Oscar nominations, and we covered till No Man's Land. And the producer of this guy, No Man's Land, has also done another film in India. Also has done another film in India as a producer. I don't remember exactly the name of the film, but if you mention the name of this guy, and you would be able to find out. So Emily is an important film. As I told you, Lagan is an important film. This particular year is important. Why? Because from India, Lagan was nominated, officially was selected also. Not only just nominated, but selected in the category. So among those 5 films, this is one of the selected films. Nowhere in Africa is also important film. Hero by Jang Yong-Moo is also important film. So Hero is another important film. Man Without a Past, I told you, Karasmaki Brothers. His brother business is also important. One question on brothers can be asked. Taviani brothers. Yesterday I was not able to tell you. Taviani brothers. Taviani brothers are also important. Cohen brothers. Okay. And this third one is Karasmaki brothers. So these brothers could be a one question. Which among the following is not a director couple? Couple means 2 people directing together. So like Lakshmikant Pyarelal म्यूजिक में होता है, इसी टाइप का ये ब्रदर वाली जो थ्योरी है, तावियानी ब्रदर्स, कोहेन ब्रदर्स और करस्माकी ब्रदर्स, 3 ब्रदर्स का नाम जो है पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे उनके का कोई और नाम डाल देंगे तो दैट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट, ध्यान रखना। 3 पॉपुलर है, कोई चौथा भी होगा इधर उधर तो मुझे पता नहीं, बट 3 का पता है तो बहुत है। हाँ जी, नीचे आ जाइए। उसके बाद हम लोगों ने और फिल्म थोड़ा सा देखा था कि कोई और इम्पोर्टेंट फिल्म होगी,
तो मैं देख लेता हूँ। इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट फिल्में हैं क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज ऑस्कर के अंदर नॉमिनेटेड। बट आई एम thinking from the master's point of view, which are the films which are made by masters like Kurosawa, Bergman, Tarkovsky, those kind of people who are celebrities from 60s and 70s, and they are still making films. So they all are important in some way. But if somebody from ages is making a film, and okay, now Water by Deepa Mehta, 2006 is also important film. The question can be formulated: which film of the Deepa Mehta was nominated in the Best Foreign Language Oscar category in 2006? तो उसमें 3 नाम डाल दिए जाएंगे और उसमें से एक नाम पूछ लिया जाएगा। तो 2006 का जो है ये वाला जो है इम्पोर्टेंट है, दीपा मेहता। उसके बाद आप नीचे आ जाइए थोड़ा सा, निकिता मिखाइलोव आ गया रशिया से, फिर वो उसका फिल्म का नाम नहीं लिखा है यहाँ पे, करेक्शन रिक्वायर्ड है थोड़ी सी, 2007 के अंदर, बाद में देख लूंगा। तो नीचे और देख लेते हैं, कोई मिल जाता है तो आदमी इम्पोर्टेंट जो मास्टर रहा हो जमाने का, जो अभी भी फिल्म बनाता हो, ऐसा कोई आदमी मिल जाए तो हम आपको बता सकते हैं। मीका लिंके फिर आ गया, द व्हाइट बैलून, व्हाइट रिबन। मीका लिंके जो है जर्मनी का फिल्म मेकर है। इसकी कांस के अंदर जो पामदौर वाला जो कैटेगरी आएगा वहां पे आपको दिखाई देगा कि इज ए पामदौर विनर और हिज फिल्म इज ए पामदौर विनर। मीका लिंके इज इम्पोर्टेंट मैन। इसका व्हाइट रिबन जो है 2009 में नॉमिनेटेड है, इसको मार्क करके रखो। फिर इनार्तू कल बताया था मैंने, इसकी भी एक फिल्म है 2010 के अंदर, ये भी इम्पोर्टेंट आदमी है। फिर 2011 के अंदर असगर फरादी भी एक इम्पोर्टेंट आदमी है, ए सेपरेशन विनर है ये फिल्म का। जो आदमी विनर होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नॉमिनेशन भी इंपॉर्टेंट होती है। इसकी एक और फिल्म है जिसके ऊपर न्यूटन फिल्म जो है, एक बहुत डिस्कशन चला था, वही आदमी कि न्यूटन कहाँ से कॉपी है, न्यूटन कहाँ से कॉपी किया गया है। तो न्यूटन जो है इसी आदमी की एक फिल्म है जिससे कॉपी किया गया। मेरे I think it is over now. We have gone to the another thing. Just a moment. Just a moment. European cinema by the 11 MPQ 5 correct, ठीक है। दिमाग से एकदम से बन रहा है उसका नाम, मैं याद करूंगा, लिख लेता। हाँ नितिन, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर previous video में you talked about some statement which in the video also is लिख लो, जब खत्म करेंगे वीडियो उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? होता है, अपना क्वेश्चन लिख लीजिए या यहाँ पर वो जो चैट बॉक्स है उसमें डाल दीजिए, जब खत्म होगा उसमें मैं सारे क्वेश्चन ले लूंगा। जिस जिसके आदमी के दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है उसको चैट बॉक्स में डालते रहो, यहाँ पे आई विल टेक इट अप वंस द क्लास होगा। यहाँ पे न्यूटन डायरेक्टर, तो कॉपी नहीं है, उस आदमी ने थोड़ा दिमाग लगा के क्या किया है कि उस फिल्म में से बीज उठा लिया बस। अब ध्यान से देखना, दोनों फिल्में एक बीज जो है दोनों का सेम है, बाकी सब अलग है। नीले रंग का पेड़ है या पीले रंग का पेड़ है, वहां अमरूद आ रहा है, यहाँ पर मैंगो आ रहा है, वहां खुशबू आ रही है कुछ और, यहाँ खुशबू आ रही है कुछ, मतलब बीज जो है वही, इसको सीड आइडिया बोलते हैं। सीड आइडिया दोनों फिल्मों का, ध्यान से देखोगे समझ आएगा। ये वो खतरनाक आदमी है जिसकी फिल्म उसने चुराई है, तो मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए उस फिल्म को ऑस्कर के अंदर नॉमिनेशन तो भेजा गया मगर सिलेक्ट नहीं किया गया। खतरनाक लोग बैठते हैं, वो खुशबू से पहचान लेते हैं किस फिल्म में किस फिल्म की खुशबू है। वो लोग अगर खुशबू भी थोड़ी बहुत मिलती जुलती होगी तो बात, खुशबू भी नहीं चाहिए उनको। इसलिए वो फिल्म जो है अच्छी फिल्म होने के बावजूद, वहां अमरूद है, ये अमरूद का पेड़ है, ये मैंगो का पेड़ है, तुम बोल रहे हो बीज एक जैसा, क्या मतलब हुआ? अमरूद का बीज अलग होता है, मैंगो का बीज अलग होता है, पता क्या? नहीं, एक जैसे बीज थोड़ी होते हैं। इसका खेल जो है वो वही है कि बीज वही है, पेड़ का नाम अलग है। खैर चलो, बहस में नहीं फंसते फालतू की। उसके बाद एंजेला हॉलैंड भी एक इंपॉर्टेंट डायरेक्टर है पोलैंड से, इसका 2011 में भी एक नॉमिनेटेड फिल्म है। कोई फेमिनिस्ट टाइप आदमी होगा तो वो डाल देगा इसको। मीका लिंके दोबारा से आ गया अमूर फिल्म को लेके 2012 के अंदर।
और एमूर जो है पाम डोर विनर भी है उस साल की, इसलिए मुझे याद है ये थोड़ा सा। जब हम पाम डोर के बारे में बात करेंगे तो ये फिल्म जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको भी याद करके रखिए। उसके बाद थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं, और इसमें इडा जो है, ये फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है। सिनेमेटोग्राफी के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, कुछ कितने लोग हैं? हाथ उठाओ जरा ऊपर, 1 2 3 4, ज्यादा लोग थे हमारे पास, तो कम कैसे हो गए? क्लास में वहां पे कितने बैठते हैं? 6 बैठते, 2 कम गायब हो गए। उनको पता है क्लास है आज? क्लास तो होती है, ये सैटरडे समझ के वो सुबह आए थे क्या? नहीं आए। चलो बोलो मारो बोलो। तो इडा जो फिल्म है, इसका हमने एक आर्टिकल जो है अपनी मैगजीन में छापा हुआ है, वो मैं आपको कुरियर मतलब वो पीडीएफ फाइल भेजूंगा, उसको ध्यान से आंख खोल खोल के पढ़ो। उसमें सिनेमेटोग्राफी एप्रिसिएशन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है एफटीआई के अंदर, व्हिच फिल्म यू हैव रिसेंटली सीन। अब कोई फिल्म 2009 में बनी थी या 8 में बनी, मैंने तो अब देखी है बात में। रिसेंटली एक बड़ा वेग टर्म है, रिसेंटली का क्या मतलब? मैंने आप देखी है, मुझे नहीं पता था, पहले किसी ने दी दोस्त ने, देखो तो मैं देख ली, मुझे अच्छी लगी। तो रिसेंटली सीन फिल्म एप्रिसिएशन के अंदर अगर तुम वो चिपका दोगे कॉर्नर से लेकर वहां तक, रट लो तोते की तरह उसको, तो तुम्हारा जो है मार्क्स कोई काट नहीं सकता है, समझे कि नहीं? तो वो हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने उसके ऊपर लिखा है, खुद सिनेमेटोग्राफर नहीं है, वो डायरेक्टर है, हमारे बैचमेट है, उन्होंने वो आर्टिकल लिखा है, उसको चिपका दो आंख बंद करके, लेफ्ट टू राइट, पूरे जितने 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, दुनिया की कोई ताकत 5 से 4 साढ़े 4 नहीं देगी। उसमें लिख भी देना इडा पे ऑस्कर लैंग्वेज का फिल्म और विनर है पोलैंड से, सबसे बड़ी बात है ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म। हाँ जी, इस बार भी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म हो सकता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई पीपल आर, ये भी लिख लो तुम लोग, मैं पूछ जाऊंगा, व्हाई पीपल इन द टाइम ऑफ कलर, सिनेमेटोग्राफी के लोग लिखो, बाकी लोग मत लिखो, डायरेक्शन में भी पूछ ले तो बात अलग है, बट फिर भी पता होना चाहिए व्हाई, क्योंकि डिसाइड तो डायरेक्टर करता है, कैमरामैन थोड़ी करता है मेरे को ब्लैक एंड व्हाइट अच्छी लगती है मैं इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट शूट करूंगा, तुम्हें क्या अच्छा लगता है उससे कोई मतलब नहीं है हमें। डायरेक्टर डिसाइड करता है कि मेरी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट मुझे शूट करनी है या नहीं। तो डायरेक्टर भी हो, तो डायरेक्शन वालों के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाई ए डायरेक्टर और व्हाई इन द टाइम ऑफ कलर पीपल वुड डिसाइड टू शूट ए फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट। लिख लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद आ गया मुझे। व्हाई पीपल would shoot black and white film or decide to do a film in black and white, then the color. What are the reasons? Mention 5 reasons with example why people shoot black and white film in the time of color. Okay? तो ये भी एक important question है, ये लिखते रहा करो, मैं भूल जाता हूँ। हाँ जी, जैसे कल डे फॉर लाइट की बात हुई थी, ऐसे जो है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव के अंदर जो अलग अलग कैटेगरी होती है 5 मार्क्स और 10 मार्क्स वाली, उसमें पूछा जा सकता है। हाँ जी, आगे आ जाइए थोड़ा, इसमें और कुछ अगर नीचे है तो मैं बता देता हूँ आपको। सेल्समैन, ये भी इंपॉर्टेंट है, उसी आदमी की फिल्म है, देखो सेल्समैन जो है, बट वो कॉपी दूसरी फिल्म से है, ये सेल्समैन नहीं है, कॉपी किया उसने शायद, सेल्समैन नहीं, सेल्समैन कुछ और नाम है उसका, मैं भूल रहा हूँ, देखिए मैंने भी होगा। हाँ जी, ये सेल्समैन भी इंपॉर्टेंट है, और ये क्योंकि ईरान का फिल्म मेकर है, तो पिछली बार एक क्वेश्चन था, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ईरानियन फिल्म मेकर। माजिद मजीदी था, उसमें 2-3 नाम और लिखे हुए थे, तो हो सकता है इसका नाम भी उसमें रहा हो, नहीं है तो बना लेंगे लोग। 2 बार ऑस्कर के अंदर झंडा गाड़ चुका है ये आदमी, मजाक नहीं होता 2 बार फॉरेन लैंग्वेज ऑस्कर जीतना, 1 साल गैप छोड़ के, 2011 फिर 2016, ये बड़ी बात होती है। हाँ जी, नीचे आ जाइए, कुछ और कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस हो गया काम। तो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज का खेल जो है 2017 तक मैंने डाला हुआ है, ध्यान रखो। 2000 क्या चल रहा है, 19, 18 है तो मैं भूल गया, 2018 भी है और 19 चल रहा है। तो 2018 में कौन कौन सी नॉमिनेटेड है फिल्में, क्योंकि रिसेंट है तो वो क्वेश्चन ज्यादा बनता है, ना कि ये सब मैंने जो लिखा हुआ है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज ऑस्कर के अंदर कौन कौन सी फिल्में चूज की गई है। मिलता अवार्ड 19 में है, बट वो कहलाता 18 का है, ध्यान रखना है, गड़बड़ मत कर लेना। वो तो कंफ्यूजन पैदा कर दिया किसी ने वो क्वेश्चन में वो भेज के कि सर आपने तो ये लिखा हुआ और ये तो इस साल की है। वो ईयर जो है अब जैसे 2019 चल रहा है, ये 2019 का अवार्ड नहीं है, ये 2018 की फिल्म का अवार्ड है। फर्क है, मिल 2019 में रहा है, पर नेशनल अवार्ड फॉर 2018 कहलाएगा, ऑस्कर फॉर 2018 कहलाएगा, 19 नहीं कहलाएगा। मिल 19 में रहा है, इसका मतलब 19 का है। 18 में जो फिल्म थी उसको अवार्ड दिया जा रहा है, क्योंकि जनवरी फरवरी में निपटा देते हैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन कम है।
यूरोपियन सिनेमा के अंदर कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत हैं और वो करेक्शन मैंने आपको भेजी भी हुई है। यूरोपियन सिनेमा में ही है वो शायद करेक्शन, वो आगे वाले चैप्टरों में ज्यादा है, कुछ वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, बट वहां तक शायद हम ना पहुंच पाए आज जो करेक्शन वाले हैं, बट फिर भी हम कॉलेज से चालू करेंगे और ये जो करेक्शन होगी तो देखते जाएंगे। समझ आ रहा है? बोलिए। ल्यूक ब्रेसोन फ्रांस का एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टर है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है? 1997 ल्यूक ब्रेसोन डायरेक्टेड फ्रेंच अमेरिकन को-प्रोडक्शन and it became a science fiction hit which stars the Bruce Willis, Mila and Gary. What is the name of the film? उसने हिंट भी दे दिया तो मैं 3 नाम बता दूं, फिर भी नहीं समझ आ रहा तो इसका मतलब यहां बताओ, ड्राफ्ट जाओ। फिफ्थ एलिमेंट इज द आंसर। ओपनिंग फिल्म था कान फिल्म फेस्टिवल का, ये भी ध्यान रखना। ये भी पूछा जा सकता है दूसरे तरीके से कि विच वाज द ओपनिंग फिल्म ऑफ द इन द कान फिल्म फेस्टिवल डायरेक्टेड बाय ल्यूक ब्रेसो। समझे कि नहीं? ल्यूक ब्रेसो एक अलग आदमी है और एक दूसरा ब्रेसो है रॉबर्ट ब्रेसो, एक अलग आदमी है। एक तीसरा ब्रेसो है हेनरी कार्टियर ब्रेसो, वो फोटोग्राफर। 3 ब्रेसो घूम रहे हैं दुनिया में, कंफ्यूजन में मत पड़ जाना। सर ने बताया था फिफ्थ एलिमेंट वाला वो अलग था, ये अलग है, ये अलग। सबसे सीनियर आदमी जो है वो हेनरी कार्टियर ब्रेसो, 60s के टाइम का। उसकी एक बुक भी है जो इसने हिंदुस्तान में क्वेश्चन लिखा, उसने हिंदुस्तान में आके एक फोटोग्राफी पे बुक लिखी है हेनरी कार्टियर ब्रेसो के ऊपर। शायद लास्ट ईयर कुछ शॉर्ट नोट्स भी था, क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। हेनरी कार्टियर ब्रेसो ने एक किताब छापी है जो नेशनल सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर IGNC, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर IGNC के ऊपर। उसकी डायरेक्टर कौन थी, फाउंडर डायरेक्टर कौन थी, क्या बवाल है वो। तो IGNC डॉक्टर कपिला वात्सल्य के ऊपर एक मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है यहाँ पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्ट हिस्टोरियन, हिंदुस्तान के जो टॉप के 3 आर्ट हिस्टोरियन है उसमें डॉक्टर कपिला वात्सल्य का नाम भी आता है। उस IGNC के फाउंडर है और IGNC ने ही वही किताब जो हेनरी कार्टियर ब्रेसो के ऊपर छपी थी वो उन्होंने छापी थी। तो ब्रेसो के ऊपर आ सकता है। उस किताब को जो लोग सिनेमेटोग्राफी का एग्जाम देने जा रहे हैं, ढूंढो नेट के ऊपर, कहीं मिल जाए इधर उधर तो अच्छी बात है, ना मिले तो 3 लोग मिलके अपने पैसे डाल के खरीद लो। 4 उसकी फोटो के ऊपर लिख पाओगे हेनरी कार्टियर ब्रेसो दोबारा भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है। जैसे हर बार एक्टिंग के लोगों को नाट्य शास्त्र पूछ लेते हैं, बैठे 2 बार नाट्य शास्त्र पूछ चुके हैं, तीसरी बार भी पूछ सकते हैं। समझा मेरी बात? तो हेनरी कार्टियर ब्रेसो की बुक खरीद लो, अगर उसके फोटो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नेट पे ढूंढो उसके फोटोग्राफ के डिस्क्रिप्शन पढ़ो, उसके बारे में क्या लिखना है वो पढ़ो। नोट्स का मतलब ये नहीं है कि 4 बातें लिख के आ गए कि वहां से किताब छपी थी, ये छपा था, वो छपा था। इंपॉर्टेंट बात लिखनी पड़ेगी, उसकी कुछ फेमस फोटोग्राफ क्या है, उसका टाइटल क्या है, फोटोग्राफ का टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन। वो फोटोग्राफ महान क्यों है वो थोड़ा बात जो है समझ आनी चाहिए एग्जामिनर को, कि इसको पता है कि कुछ फोटो देखे जिंदगी में ब्रेसो के कि नहीं देखे। तो हेनरी कार्टियर ब्रेसो एक अलग आदमी है, रॉबर्ट ब्रेसो एक अलग आदमी है और ल्यूक ब्रेसो एक अलग आदमी। रॉबर्ट ब्रेसो 60s के जमाने का आदमी है। उसकी एक फिल्म है जो सबसे ज्यादा, काफी फिल्में पॉपुलर है, मैंने उसका इंपॉर्टेंट लोगों में नाम भी डाला हुआ है। तो मुशैद करके उसका एक बड़ा फेमस फिल्म है, पिक पॉकेट करके उसका एक फेमस फिल्म है, 2 फेमस फिल्म है उसकी। तो यहाँ पर जो है आंसर हो गया जी फिफ्थ एलिमेंट। हाँ जी। What is the name of the French actress who acted in movies like Belle de Jour, Flick and Oscar-winning film Indochine? Indochine की बात हमने कल की थी, याद आ रहा है किसी को कुछ? नहीं की थी, कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे कहीं। ऑस्कर है, सॉरी, तो हमने फॉरेन लैंग्वेज ऑस्कर की बात की थी, ये ऑस्कर वाली किसी फिल्म में है ये, जिसका नाम है इंडोचाइन। तो ये वही लेडी है जो हमने बेले द जूर बताया था आपको, जो लुई बुनोल की फिल्म है, जो शायद मेरे ख्याल से बेले द जूर उसके लिए भी नहीं होती, इसी तरह है, ये नॉमिनेटेड नहीं थी। तो इस कैथरीन देनव इज द एक्ट्रेस। इसका फोटो मैंने आपको कल दिखाया था, अम्ब्रेला वाली जो लेडी जो नीले रंग का अम्ब्रेला लेके घूम रही है, वही है। रुचि बातो नहीं है, एलिजाबेथ नहीं है, एलिजाबेथ डिपार्टो नाम की कोई एक्ट्रेस नहीं है दुनिया में, ध्यान रखना है, जो मूड में मैंने बना दिया। कुछ भी फॉरेन नाम लिख दो और जो पता ही नहीं है तो क्या करेगा। हाँ जी, आगे आ जाइए। Who directed the films Breaking the Wave, Europa, The Idiot and The Dancer in the Dark? ला वॉन ट्रायर, इसका स्पेलिंग बड़ा उटपटांग सा है, लार्स वॉन ट्रायर। इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है, डेनिश फिल्म मेकर है ला वॉन ट्रायर।
एक मूवमेंट है आर्ट का जो डायरेक्शन के स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा। पूछ लेना आज जो है उसमें लावोंतिये का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लावोंतिये और बाकी लोगों को छोड़ दो, नेक्स्ट पे आ जाइए। व्हाट इज द नेम ऑफ द बिगेस्ट प्राइज ऑफ द बर्लिन फिल्म फेस्टिवल? गोल्डन बियर। ये बड़ी अजीब बात है, वहां पे कुछ गलत लिखा हुआ है, नाम ठीक है और नंबर गलत है, एक ही जगह वहां पर सी कर लो, गोल्डन बियर वही का वही है। तो बियर, एलिफेंट, ये सब लोग जो है अवार्ड्स के नाम होते हैं, कहाँ पे एलिफेंट है कहाँ बियर है, थोड़ा याद रखना। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी है जो एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती है। चिल्ड्रन फिल्म प्रोटोटाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है। CSFI, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, मैंने एक फिल्म शूट किया था किसी जमाने में उन लोगों के लिए, लाडली राम था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको भूल जाओ। CSFI क्या है? चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। इनका फेस्टिवल एनुअली होता है, बाई मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, तो ये पता कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उनका जो फेस्टिवल है उसमें अवार्ड का नाम जो है कुछ एलिफेंट से कनेक्टेड है, गोल्डन एलिफेंट या ऐसे कुछ करके थोड़ा देख लेना, चेक कर लेना क्या है उनका अवार्ड, ठीक है। तो CSFI का अवार्ड क्या है पता लगा, गोल्डन बियर तो याद कर लिया, अपना लोकल एलिफेंट को नहीं याद किया, वो क्वेश्चन एलिफेंट पे आ गया, तो देख लेना चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के अवार्ड का नाम क्या है। आगे आइए जी थोड़ा सा। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्ट्रेस हु एक्टेड इन फिल्म्स लाइक Yemo Yemo, Carne, then He, Todo and Women on the Top? हाँ जी बोलिए, 5 नंबर का आंसर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कंफर्म कर लो थोड़ा सा। पिल्ला क्रूज लिखा हुआ है, ठीक है, करेक्ट है। हाँ जी, कई बार क्या नाम ठीक होगा उसके आगे ABCD गड़बड़ होगा, तो इसलिए थोड़ा चेक करना जरूरी है। What is the name of the actress who acted in La Ligue and Diabolique? Diabolique उसका फेमस फिल्म है 1996 का, तो इसाबेल अदजानी, करेक्ट है ये। आगे आ जाइए। Actor director was born in France, acted in film like Assassin, Jacob the Liar फेमस फिल्म है, and basically वो डायरेक्टर आदमी है। And the story of the Joan of Arc, Joan of Arc जो है दोबारा से बनी है फिल्म। जॉन ऑफ आर्क एक पुरानी फ्रेंच फिल्म है जो अपने टाइम में कंपोजिशंस के लिए स्टडी की जाती है। आप लोग लिख लो सिनेमेटोग्राफी के लोग, जॉन ऑफ आर्क के बारे में कुछ अगर कोई पूछ पाछ ले वहां पर तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेना। देखना जॉन ऑफ आर्क के ऊपर सिनेमेटोग्राफी ऑफ जॉन ऑफ आर्क को लेके कहीं कोई आर्टिकल मिल जाए तो वहां से कुछ पॉइंट देख लेना, और नेट पे फिल्म थोड़ा देख भी लेना। तो ये जो है दोबारा से इन लोगों ने जो है बनाया था कलर के अंदर, वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, और इसका थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेना कि फिल्म का चक्करबाजी क्या है, बार बार क्यों बनाए जा रहे हैं लोग, जो है क्या चक्कर है कि बार बार बनाए जा रहे हैं। तो 7th नंबर क्वेश्चन के अंदर जो है ये आपका मैथी जो है इसका करेक्ट आंसर। नहीं है, वो एक्टर भी है, तो लोग एक्टर के तौर पे कम पहचानते हैं, बट पहचानते हैं, छोटे मोटे रोल किए हैं उसने, छोटे नहीं मतलब साइड रोल नहीं किया है, इंपॉर्टेंट रोल किए हैं फिल्मों के अंदर। हाँ जी, उसके बाद फिर हम आगे। विच डायरेक्टर ए लीडिंग लाइट ऑफ द नोवेल वे डायरेक्टेड 27 फीचर फिल्म्स बिगिनिंग विद 400 blows and ending with the Dimanche just before his ultimate death in 1986? ये भी बता दिया है, ये सब हिंट दे दिए हैं तुम लोगों को। फ्रांसवा ट्रूफॉ इज द नेम, वही जो लास्ट ईयर हमने बताया था, डे फॉर नाइट वाला आदमी, डे फॉर नाइट जो फॉरेन लैंग्वेज ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड थी, और लास्ट मेट्रो जीरो डिपार्ट्यू और कैथरीन दी वाला जो फिल्म लास्ट का जो फॉरेन लैंग्वेज के अंदर है, ये वही आती है। थोड़ा कनेक्शन भी जोड़ लो, भूलते मत जाओ, पिछला जो है थोड़ा याद रहना चाहिए। डायरेक्शन के स्टूडेंट्स के लिए एक ये जॉर्ज फ्रेंजू का नाम लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं बता देता हूँ तुम्हें। एक सेमिनार के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था किसी ने, जिसके ऊपर डिबेट थी, और ये पूछा गया था कि डू यू थिंक दैट द फिल्म शुड हैव ए बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड? ऐसा एक क्वेश्चन FTI एंट्रेंस एग्जाम में पिछले 3 साल के अंदर आ चुका है। डायरेक्शन वाले लोग अगर आप खोल के पुराने पेपर पढ़ेंगे तो वहां आपको दिखाई देगा। तो ये क्वेश्चन जो है जॉर्ज फ्रेंजू ने पूछा था गोदार्ड से कि डू यू बिलीव मिस्टर गोदार्ड दैट देयर इज ए बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड ऑफ ए फिल्म? तो उसने आंसर दिया था यस बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। बिगिनिंग मिडिल होगी, एंड भी होगा, बट जरूरी नहीं है बिगिनिंग में ही हो, मिडिल में ही हो, एंड में हो। एंड बिगिनिंग में भी हो सकता है, मिडिल बिगिनिंग में भी हो सकता है, बिगिनिंग में कुछ भी हो सकता है। तो ये एक अजीबोगरीब डिबेट है जो उन्होंने वहां पे डाल दी है। तो ये उसका मतलब यही है कि जो नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है उसको लेके है। तो फिल्म जो है कहीं से भी चालू हो सकती है और होती भी है कभी कभी, इंडिया में भी थोड़ा सा लोग सीख गए सब चीजें।
तो ये जॉर्ज फ्रिंजू का एक फेमस फिल्म है ब्लड ऑफ ए बीस्ट, मैंने लिखा नहीं है, तुम लोग लिखो ब्लड ऑफ ए बीस्ट। दोस्तों डॉक्यूमेंट्री है ये, ब्लड ऑफ ए बीस्ट, याद रखना, कहीं फीचर फिल्म लिखा के लिख के आ जाओ वहां पर। ब्लड ऑफ ए बीस्ट फेमस फिल्म है, ब्लैक एंड व्हाइट, फ्रेंच डायरेक्टर है, उस डॉक्यूमेंट्री के लिए लोग इसको जानते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। लुई माल who began his career as a documentarist before moving on to direct a number of popular and sometimes controversial feature films, which among the following films he did not direct। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन हो जाता है कि जिसको लुई माल नहीं मालूम, ये वही आदमी है जो कल मैंने आपको बताया था, लेकॉम लूसिया करके एक फिल्म थी इसकी, याद आ रहा है कुछ छोटा मोटा, ये वही आदमी है, लेकॉम लूसिया वाला आदमी है। तो इसमें जो है द लवर जो है इसकी फिल्म है, इसमें क्या आंसर दिया हुआ है, लवर है इसकी फिल्म, फिर मर्मर ऑफ द हार्ट भी इसी की है, जरी ऑन द मेट्रो भी इसकी है, इसका दूसरा नाम है लास्ट मेट्रो, कुछ मेट्रो देख लेना, वही फिल्म है ये। और माय डेज एट मॉड इसका नहीं है, ये एरिक रोमर का फिल्म है, माय डेज एट मॉड एरिक रोमर की फेमस फिल्म है। एरिक रोमर भी फ्रेंच न्यू वेव डायरेक्टर्स के अंदर इंपॉर्टेंट आदमी रहा है, 5 इंपॉर्टेंट लोगों में एरिक रोमर का नाम भी आता है। एरिक रोमर की बड़ी सिंपल सी फिल्म है, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, ये भी ध्यान रखना, माय डेज माय नाइट एट मॉड। हाँ जी, ना सॉरी 10 का जो है, कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग, नाइट माय डेज एट मॉड, करेक्ट, एरिक रोमर वाली फिल्म। उसके बाद याद देवी पढ़ के घबरा गया। हाँ जी, 2 म्यूजिकल फिल्म्स, द यंग गर्ल्स ऑफ रॉकफोर्ट एंड द हार्ट-ब्रेकिंग अम्ब्रेला ऑफ शेबॉग, हु डायरेक्टेड दिस फिल्म हैविंग कैथरीन देनेव एज द लीड। ये वही फिल्म, वही लड़की है नीले अम्ब्रेला वाली, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या है, याकदामी इसका डायरेक्टर है, फ्रेंच न्यू वेव के टाइप का ही आदमी है ये। 10वें का आंसर जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दोनों जो है म्यूजिकल फिल्म है, हॉलीवुड स्टाइल का जो म्यूजिकल जॉनर था उस जमाने में, उस टाइप की ये फिल्म है। सिंगिंग इन द रेन भी एक म्यूजिकल अमेरिकन फिल्म है, जो उस जमाने में जब हॉलीवुड के अंदर म्यूजिकल फिल्में बनता था, ये वो उस जमाने की फिल्म है। हाँ जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। Which film directed by François Truffaut starring Jean-Pierre Lee is the final feature film of ये एक सीरीज था इसका एंटोन डोनल कैरेक्टर का, जो इसने 3-4 फिल्में इसके अंदर बनाई। अब ये फेमस सीरीज है, जिसने फिल्म देखी होगी उसको थोड़ा पता होगा या पढ़ा होगा उसने ट्रुफो के बारे में। तो ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, हर एक आदमी नहीं दे सकता इसका आंसर। तो लास्ट का जो अल्टरनेटिव है इसका लमूर जो है, ये करेक्टर 400 ब्लॉक में नहीं है, वो तीनों के अंदर है, इसके अंदर वो नहीं है। आइए नेक्स्ट पे आ जाइए। ये इसका फेमस फिल्म है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, ये यहाँ पर क्यों नहीं लिखा हुआ है, चलो हाँ, चिल्ड्रन ऑफ पैराडाइज। ये फिल्म एक ही फिल्म है ये। चिल्ड्रन ऑफ पैराडाइज वाज वोटेड बाय द फ्रेंच फिल्म एकेडमी एज द ग्रेटेस्ट फ्रेंच फिल्म ऑफ ऑल टाइम। हु डायरेक्टेड दिस टाइमलेस मास्टरपीस? मैक्स ऑप्लस। आंसर क्या है इसका? मार्सल कार्ने, रॉबर्ट ब्रेसोन, रेने क्लेयर, मार्सल कार्ने। मैक्स ऑप्लस की दूसरी फेमस फिल्म है जिसके पीछे लास्ट में आगे हमने क्वेश्चन बनाया हुआ है। Which writer director created the character of Monsieur Hulot? जो मैंने आपको कल बताया था, जिसकी 3 बार जो है फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी के अंदर जो है वो खुद डायरेक्टर भी है और एक्टर भी है। ये हुलो वाला जो चक्कर है, मिस्यू हुलो जो है, उसके अंदर हर एक में वो मिस्यू हुलो ही बनता है। हर एक फिल्म के अंदर उसका नाम जो है मिस्यू हुलो ही होता है। तो ये याक तातीस का नाम है और इसने 5 या 6 फिल्म अपनी जिंदगी में बनाई है कुल मिलाकर, और 2-3 उसमें से फॉरेन लैंग्वेज ऑस्कर के अंदर बैठी हुई है। इसमें क्या लिखा हुआ है? मैं थोड़ा सा कुछ एक क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं। ये भी एक इंपॉर्टेंट डायरेक्टर है रेने क्लेमो, बट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसकी एक फेमस फिल्म है इस पेरिस बर्निंग, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया इसके अंदर। इस पेरिस बर्निंग जो है इसका फेमस फिल्म है, हालांकि आंसर इसका ला पियर दूस है जो इसने नहीं बनाया है। हाँ जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। हु वाज द प्रोलिफिक न्यू वेव डायरेक्टर हुज फर्स्ट फीचर फिल्म बाय ली बियो सू? हाँ जी बोलिए।
फर्स्ट फिल्म हमेशा इंपॉर्टेंट होती है डायरेक्टर की। जैसे नाइफ इन द वाटर रोमन पोलांस्की का फेमस फिल्म है, जो हमने कल जो है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज ऑस्कर में भी देखा था, नॉमिनेटेड थी वो। तो ऐसे ही जो है, जो 5 फ्रेंच न्यू वेव सिनेमा के जो डायरेक्टर्स हैं, उसमें गोदार्ड है, क्लैड शैब्रॉल है, एरिक रोमर है, फिर वो जो माय डेज इन मॉड वाला जैक डेमी भी है, और एक आदमी और है ट्रूफो। तो उसमें से जो है ये वाला लास्ट वाला जो इस कैरेक्टर है इसके अंदर, ये जो है क्लॉड शैब्रॉल का फिल्म है। क्लॉड शैब्रॉल की बहुत और फेमस फिल्म है, उसका इंग्लिश नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट की फिल्म है अपने जमाने की, वो एक मर्डर मिस्ट्री को लेके है। बट ये फिल्म भी पूछी जा सकती है क्योंकि पहली फिल्म है उसकी। जनरली क्या है, जब भी अगर पूछा जाएगा तो ओरिजिनल नाम भी दिया जाएगा, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी नाम जो है दिया जाएगा, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। जिसको इंग्लिश पता है तो इंग्लिश वाला देख ले, जिसको फ्रेंच याद है तो वो फ्रेंच भी। जैसे कंटेम्प्ट जो है लुई बार्डो की एक फिल्म है, जो गोदार्ड ने डायरेक्ट की है, और वो जो प्रोड्यूसर जो मैं कल बता रहा था, उसका जो हस्बैंड है क्या नाम है, सोफिया लॉरेन का, उसने वो प्रोड्यूस किए। तो वो फिल्म इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो फिल्म के अंदर ओरिजिनल जो डायरेक्टर है जर्मनी का, एम, जिसने फिल्म बनाई है, वो उसमें एज ए डायरेक्टर के अंदर काम कर रहा है। फिल्म मेकिंग को लेके फिल्म है, नॉवल के ऊपर बेस्ड है, उसमें कहीं क्वेश्चन आएगा जब हम बात करेंगे। मैनी यूरोपियन डायरेक्टर वर्ल्ड वॉर II, द ग्रेट जॉन रेनोir, ये पेंटर रेनोir का लड़का है। रेनोir के ऊपर भी कोई पेंटिंग का क्वेश्चन बन सकता है, इसे लिख लेना। Moved to America for duration of the war and made several films. Which among the following films he did not direct? हाँ जी, क्या आंसर दिया हुआ है हम लोगों ने यहाँ पे? Caught, Swamp Water, Woman of the Beach, Caught, करेक्ट। हॉलीवुड फिल्में ज्यादा ऑस्कर से कनेक्टेड फिल्मों के क्वेश्चन आंसर ज्यादा आ सकते हैं, बट ये कुछ एक कनेक्शन भी होता है कई बार। जैसे कल बताया मैंने आपको, ये जो म्यूजिक के ऊपर फिल्म बना हुआ है, जो बहुत बड़ा म्यूजिशियन रहा है यूरोप का, उसके ऊपर उसी आदमी ने, मिलोश फॉर्मैन ने, जो पहले जिसकी ब्लॉन्ड्स लव फिल्म है और जिसका एमाडुअस फिल्म का नाम है, वो उसके अंदर जो सेलारी का कैरेक्टर है, उसको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर विनर है वो उस फिल्म के अंदर। हालांकि मेन कैरेक्टर के लिए नहीं है, बट डिपेंड करता है कि कौन सी फिल्म का क्या पूछेंगे। तो ये जो है क्या क्वेश्चन था मैं भूल गया। जॉन रेनोir, some people move to the America but their famous films are not the one which they have directed in America. The famous films are generally the one which they have directed in their home country. It's a blonde slow है। Who wrote and directed a series of 5 films featuring character Venkat? ये दोबारा क्वेश्चन तो नहीं आ गया ये? वो कौन सा सीरीज था? अच्छा, वो वही सीरीज का दोबारा क्वेश्चन आ गया। रिपीट अभी क्वेश्चन। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंसेस के अंदर, उसमें मैंने सीरीज के अंदर फिल्मों के नाम पूछे हैं, कौन सी फिल्म में वो कैरेक्टर नहीं है। यहाँ पे मैंने डायरेक्टर का नाम पूछा है, थोड़ा सा फर्क है। वहां पे मैं वही कहूँगी, दोबारा रिपीट कैसे होगा। वहां पे कौन सी फिल्म में वो कैरेक्टर नहीं है, यहाँ पे मैंने पूछा है कि इस कैरेक्टर को लेके जिन्होंने एक सीरीज बनाई है वो डायरेक्टर। वैसे रिवर्स भी पूछा जा सकता है। हाँ जी, आगे आ जाइए। 18वां क्वेश्चन। इसकी शक्ल जो है जॉन पॉल बेलमोंडो की सब लोगों को पता होनी चाहिए। ये बहुत सारी फिल्मों में गोदार्ड की काम किया है उसने, इसीलिए मैंने यहाँ एक क्वेश्चन उठा के बना डाला उसका। गैंगस्टर एक सीरीज बनी थी, उसके अंदर बहुत लोगों ने काम किया था। तो ये जो है द सिसिलियन क्लैन इज अ क्लासिक गैंगस्टर फिल्म डायरेक्टेड बाय हेनरी पिलो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर डिड नॉट अपीयर इन इट? तो उसके अंदर जो है बाकी सब लोग थे, ये आदमी नहीं। तो मैंने कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ये डाल दिया। बाकी सब इंपॉर्टेंट लोग हैं। इन सब लोगों की शक्लें जो है आगे आप देखेंगे। मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फ्रेंच फिल्म्स के नाम पर एक सेक्शन तैयार किया है, आप आगे जाके पेज चेक करेंगे। फ्रेंच फिल्म्स के अंदर जो है, फ्रेंच फिल्म्स के बाद जो है मैंने एक पेज डिवोट किया है इंपॉर्टेंट एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस के लिए। देखो कहाँ पे वो पेज जो है, एक पेज है, ज्यादा पेज का 100 पेज। हाँ, ये रहा। तो इसमें सब लोगों की शक्लें जो है, जो भी एला डेलो भी है इसमें, हेनरी सिने भी है, जो पियर भी है, जो केविन, ये सब नाम जो है आपको याद करने पड़ेंगे बड़े तरीके से। आपने शायद पहली बार सुने हो जिंदगी में, वो आपकी प्रॉब्लम है, बट ये सारे नाम जो है आपको पता होने चाहिए, इनकी शक्ल भी पता होनी चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ आ सकता है वहां पे, एफटीआई थोड़े से पैसे खर्च करने बैठ गई तो कलर भी आ सकता है। कलर नहीं होगा, कलर को ब्लैक एंड व्हाइट करके दिखा दिया तो उसकी शक्ल चेंज नहीं हो जाती है, शक्ल वही रहती है।
क्योंकि वहाँ इमेज आती है, तो इसलिए मैंने ये जो है क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनाया है, इनकी सबों की शक्लें जो है उठा उठा के यहाँ पर डाल दी। पेज नंबर 100 पे आप जाइए, कोई भी आदमी इसमें से पूछा जा सकता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, लास्ट एक शक्ल आदमी की बनाई हुई है, जॉक पेरिन करके एक आदमी है वहां पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। इसकी एक फिल्म है सिनेमा पारादीजो, जो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज ऑस्कर विनर है अपने जमाने की। जमाना मतलब 1989 के आसपास की बात है। 89, हाँ 90 में किया गया था, तो 89 की ये विनर फिल्म है, 89 या 90 दो में से। तो जो सिनेमा पारादीजो का जो मेन हीरो है वो ये आदमी, और ये आदमी है फ्रेंच, फिल्म है इटालियन, ध्यान रखना, कंफ्यूजन में मत पड़ जाना। इटालियन फिल्म है वो, फ्रेंच जो फॉरेन लैंग्वेज ऑस्कर विनर जो है, गुसिक जी तरनतोरे करके नाम है उसका, जिसको ऑस्कर मिला है। ये उस फिल्म का हीरो है। हीरो मतलब मेन आदमी, इंडियन तरीके से हीरो नहीं होता है कुछ, इसमें मेन आदमी हीरो है। इसके साथ जो है एक और आदमी है वहां पे, देखता हूँ उसकी शक्ल मैंने डाली है कि नहीं डाली, भूल गया। वो नहीं, दूसरा आदमी भी खतरनाक आदमी है। उसकी फिल्म है पोस्टमैन को लेके। पोस्टमैन, वो क्वेश्चन जब आएगा तब बताऊंगा। कहीं ना कहीं उसका फोटो होना चाहिए, बट कैसे होगा वो मेरे को सोचना पड़ेगा। तो पूछ सकता है कोई पागल आदमी बैठा हुआ वहां पे कि नहीं, जिसको सिनेमा पारादीजो बहुत पॉपुलर फिल्म है, बहुत लोगों को पता है, जो लोग फिल्में देखते रहते हैं यूरोपियन, सबको पता है सिनेमा पारादीजो क्या है। तुमको पता है नहीं पता वो अलग बात है, बट लोग इस तरीके से कंसीडर करते हैं कि क्या वो फिल्म लोगों को मालूम है, नहीं। जैसे इसमें एक एक्टर डाला हुआ मैंने, जॉन लुई त्राटिग्ना, ब्लैक एंड व्हाइट अंकल जी है यहाँ पे, नीचे से दूसरे। अब ये किस्लोस्की की एक फिल्म है, थ्री कलर ब्लू के अंदर बैठा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एक्टर किस फिल्म है। हॉलीवुड ही नहीं पूछा जाएगा, यूरोप भी पूछा जाएगा, ध्यान रखना। क्या है, ये पेपर में जा रहे हो, अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट का पेपर देने नहीं जा रहे, आइए। जॉपल बर्मांडो की शक्ल कैसी लगती है वहां पे देख लीजिए, उसके बाद दोबारा से वापस आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19, अगेन जीरो फिलिप्स इसका आंसर है। ये जो नाम वाले क्वेश्चंस हैं, इनको आप थोड़ा सा मार्क करके वहां पीछे बैकग्राउंड में जाके इनकी शक्ल जो है देखते रहिएगा। तो आप एक्चुअली यहीं पे होना चाहिए था, बट मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं वहां पे उसको सेट करूं, तो फिर मैंने उन लोगों को एक अलग से बना के सब लोगों की शक्लें जो एक साथ लगा दी। जिससे क्या है, एक्चुअली क्वेश्चन के साथ अगर लोगों की 4 लोगों की शक्लें लगी होंगी तो थोड़ा याद करना आसान हो जाए। तो नेक्स्ट एडिशन में सोचूंगा मैं इसको किस तरीके से। ला रोंडे करके एक फिल्म है मैक्स प्लस का, ये ऊपर उसके की जगह नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, हु प्लेड द रोल ऑफ नरेटर इन मैक्स प्लस 1950 मास्टरपीस। तो क्या है कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन में जाके वर्ड उसमें विकिपीडिया में इसकी थोड़ी सी स्टोरी पढ़, याद करने का जो तरीका है वो ये है कि वहां जाके थोड़ी सी स्टोरी पढ़ लो, फिर आइडिया। जैसे मैंने बताया, सिनेमा पारादीजो एक इंपॉर्टेंट फिल्म है, सिनेमा हॉल के ऊपर है। सिनेमा हॉल जो है डिमोलिश होता है, फिर उसी शहर में वापस आता है, और उसकी मेमोरीज जो है नहीं बिकम अलाइव। तो कैसे जो है, एक थोड़ी सी अगर कहानी पता लग जाती है तो थोड़ा सा आपको याद रह जाता है, वरना याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। सब नए नए नाम है आप लोगों के लिए। रोजर वदीम के ऊपर मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट हस्बैंड ऑफ ब्रिजी बार्डो। ब्रिजी बार्डो का जो पहला हस्बैंड है उसका नाम है रोजर वदीम, और इसने अपनी एक बायोग्राफी भी लिखी हुई है। सिनेमा के ऊपर जो बुक्स है, जब वो वाला सेक्शन आएगा तो हम लोग आपसे बात करेंगे। तो एक फेमस फिल्म है ब्रिजी बार्डो का, एंड गॉड क्रिएटेड वुमेन, मेड एन इंटरनेशनल स्टार ऑफ विच एक्ट्रेस? ब्रिजी बार्डो, मार्टिन जोमारू, कैथरीन देनव। नो, फर्स्ट आंसर इज ब्रिजी बार्डो। सब इंपॉर्टेंट एक्ट्रेसेस हैं। हाँ जी। Which controversial film directed by Louis Buñuel star Catherine Deneuve as a bored housewife who decided to become a prostitute? 4 फिल्मों के नाम लिखे हुए हैं मैंने, चारों में से अगर किसी ने नहीं देखी है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो इसमें पहला छोड़ दो, तिस्ताना वही फिल्म है जो पहले आप लोगों को बुनुअल के साथ फॉरेन लैंग्वेज ऑस्कर के अंदर नॉमिनेटेड फिल्म थी। तो इसमें पहले तो जूर वाला जो वो है, तीनों जो लास्ट की फिल्में हैं ये बुनुअल की फिल्म है। डिस्ट्रिक्ट चामो बुर्जोली भी है वहां पर, ध्यान से देखोगे ऑस्कर नॉमिनेशन के अंदर ये वही आदमी है, लुई बुनुअल। तो आंसर क्या हो गया, पहले तो जू। हाँ जी, नेक्स्ट पे आ जाइए आप। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वही है। चलो नेक्स्ट पे आओ। 23वां नंबर क्या है?
23वां हो गया हमारा, नहीं हुआ, नहीं हुआ। हाँ जी, बेस्ड ऑन द टैलेंटेड मिस्टर रिप्ले, एक इस बार एक कार्टूनिस्ट जो है मरा है अमेरिका का, बड़ा फेमस, स्टैनली, करेक्ट। स्टैनली के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो उसके जितने भी कार्टून छोटे मोटे कैरेक्टर हैं उनको थोड़ा देखो। चाचा चौधरी टाइप कैरेक्टर नहीं बनाया उसने, इंटरनेशनल सुपरमैन वुपरमैन टाइप के कैरेक्टर हैं, उनको देखो। मैंने शायद एक दो क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, एग्जैक्टली वो जो क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। उस टाइम में मैंने कुछ रिसर्च करके जो है तरीके से वो क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया है। स्टैनली के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। बाद में बोलना कि सर आपने बताया नहीं था। जो आदमी पिछले 1 साल के अंदर गुजर गया है उसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि वो करंट अफेयर का टॉपिक हो जाता है, और सिनेमा, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर से भी अगर जुड़ा होगा तो ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे मैं कृष्णा सोक्ती बताया, कृष्णा सोक्ती के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। अब ये बोलो अरे हम तो केरला से, हमको क्या पता, तुमको नहीं पता तो भैया ये क्या बताओ। हम भी महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं, हम भी मराठी मानस है, हमारा FTI पूना के अंदर है, कोई क्यों आ रहे तुमने क्या नहीं। तो ये सब फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए। रीजनलिज्म का कोई मतलब नहीं होता है। सब लोग जो इम्पोर्टेंट है नेशनल लेवल पे, चाहे वो केरला से है, चाहे वो भूटान से है, भूटान मतलब ये अपना उड़ीसा से है या कहीं और से है, उससे कोई मतलब, इतनी डेवलप्ड स्टेट है उसका कोई लेना देना। अगर वहां पर कोई इंपॉर्टेंट आदमी पैदा हुआ है, जैसे नीरज महापात्रा उड़ीसा का फिल्म मेकर है, FTI का ग्रेजुएट है, उसने 2-3 ढंग की फिल्में बनाई है, ढंग की मतलब बनाई ही 2-3 फिल्में। नीरज महापात्रा के ऊपर पूछ लिया तो क्या बोलोगे, अरे वो तो उड़ीसा से, हम आंसर नहीं देते, ऐसे नहीं बोल सकते ना। कुछ भी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो पूछी जा सकती है। हाँ जी, 1943 फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय हेनरी जॉर्ज क्लू। इसकी फेमस फिल्म, सबसे ज्यादा एक फेमस फिल्म है जो वेजेस ऑफ फियर करके जो है, क्वेश्चन नंबर D इज सेट इन अ स्मॉल प्रोविंशियल टाउन व्हिच इज प्लेग्ड बाय अ सीरीज ऑफ विशियस पॉइजन पेन लेटर्स। हाँ जी, आंसर क्या लिखा हुआ है हमने, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, 24 का आंसर है ये, कुछ और ये नहीं है। तो ये अगर आपको स्टोरी नहीं मालूम तो आप आंसर नहीं दे सकते। फेमस फिल्म वेजेस ऑफ फियर है, क्वेश्चन मैंने कुछ और उटपटांग का बना दिया है। कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कभी कभी, केवल ये सोच के कि इस आदमी के ऊपर क्या फिल्म बनाई जाए, तो उसकी 3 फिल्में ले लो, एक का सिनॉप्सिस पकड़ लो, और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो है इसका आंसर वेजेस ऑफ फियर। वेजेस ऑफ फियर इसकी सबसे ज्यादा फेमस फिल्म, क्यों, क्योंकि ये बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज ऑस्कर में भी रही होगी, उसके बाद किसी ना किसी साल में देखोगे तो शायद पता लगेगा, या फिर कांस के पामदौर में रही होगी, अगर वहां नहीं है तो पामदौर में रही होगी, पामदौर वाला चैप्टर आएगा तो वहां भी देखते। व्हाट वाज द याक्तातीस फर्स्ट फीचर फिल्म। अब देखो जिसको नहीं पता वो फंस जाएगा यार, फिल्में तो ये पता है कि सारी की सारी है ये फिल्में, ये हुलोज हॉलिडे भी है, मॉर्निंग भी है, प्ले टाइम भी है, जुल्का फात भी है। तो 25 का आंसर क्या है, जुल्का फैन। तो इसलिए कभी कभी फिल्मों का सिनॉप्सिस और क्रोनोलॉजी भी पता होनी चाहिए, पहली कौन सी थी, दूसरी तीसरी ना भी पता हो, बट पहली और आखिरी। जैसे हमने प्रूफों के ऊपर एक क्वेश्चन है वहां पर, तो सबसे इसकी जो सबसे फिल्में सब इंटरेस्टिंग है अपने आप में, देयर वर वेरी फनी फिल्म्स, बच्चों को भी बड़ी अच्छी लगती है वो फिल्में, क्योंकि उसमें कॉमेडी है, चैपलिन टाइप की कॉमेडी है, बट चैपलिन का टाइम जो है ब्लैक एंड व्हाइट के टाइम से, स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं है ये, बट इसका एक माइम के ऊपर ज्यादा, माइम के ऊपर काम जो होता है, वो जो फ्रेंच माइम है उसमें भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन इसका है, तो इसका स्टाइल थोड़ा सा अलग है चैपलिन से। ये क्वेश्चन डायरेक्शन के स्टूडेंट्स के लिए बन सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है पर बन सकता है ये क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइलेंट फिल्म्स डायरेक्टेड बाय फ्रेंच डायरेक्टर जैक ताती एंड चैपलिन। ये क्वेश्चन बन सकता है, आप लिख लीजिए, थोड़ा आंसर ढूंढने की कोशिश करना, मिल जाएगा। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। What is the difference in the style of silent filmmaking directed by Charlie Chaplin and Jacques Tati? थोड़ा डिफिकल्ट है, जिसको नहीं पता ताती कौन है तो वो अपना कुछ लिख के आएगा, बट अगर तुम लोग थोड़ा मेहनत करके जाओगे, बट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। स्पेलिंग बेटा हाँ सब साइलेंट, कोई डायलॉग फाइलॉग नहीं होता इसकी, कोई गलती से छीन, तो छीन डायलॉग थोड़ी हुआ, ऐसे कोई छीन मार दी किसी ने, हेलो हेलो बोल दिया तो डायलॉग थोड़ी है। गुड मॉर्निंग, हालांकि ऐसे तुम छोटा मोटा वर्ड इधर उधर आ जाए तो आ जाए, वरना कोई डायलॉग वाला नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टर है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन डायरेक्शन के स्टूडेंट से कि तुमने ताती नहीं देखा तो तुम यहाँ क्या करना है,
बैठ जाओ। हाँ जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। इन द फिल्म जूल्स एंड जिम, फॉन्सो ट्रूफो हु प्लेड द कैरेक्टर ऑफ जिम। अब ये दो लोगों की एक कहानी है, जूल्स एंड जिम। दोनों लोग एक ही लड़की से प्यार कर रहे होते हैं। तो उसमें ये मैंने क्वेश्चन बना दिया कि ये कौन है और वो कौन है। तो अब जिसकी शक्ल तुम्हें नहीं पता तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पीछे मैंने फोटो बना रखी है सब लोगों की, वहां जाके फोटो देख लो और थोड़ा याद करने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? 27, हेनरी सी। अब देखो, इन द फिल्म हु प्लेड द कैरेक्टर ऑफ जिम और जूल्स। अभी जिम पता है, किसी ने जूल्स पूछ लिया तो क्या करो? मैं तो जिम पूछा है तो जूल्स भी तो किसने किया होगा। तो अगर आप इसमें, मैंने पीछे पोस्टर्स का एक इमेज लगाया हुआ है कहीं ना कहीं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेजेस। आप पीछे आइए थोड़ा सा, कहीं मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं भी कर रहा हूं यहाँ पर, कि पोस्टर का इमेज देके पूछा जा सकता है कि विच कमेंट। बोलो। एक पोस्टर लगाया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है जो लास्ट ईयर सिनेमेटोग्राफी वालों से पूछा गया था, वो क्वेश्चन डायरेक्शन वालों से भी पूछा जा सकता है और एक्टिंग वालों से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वो जनरल चीजों की बातें हैं। एक्टिंग वालों से ये भी पूछा गया है कि कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स को स्टोरी फ्रेम करिए, जो एक्चुअली डायरेक्शन वालों से पूछा जाना चाहिए था, बट एक्टिंग वालों से पूछ लिया। क्या करोगे? नहीं नहीं, हम तो एक्टर बनना चाहते हैं, हमको स्टोरी नहीं लिखनी, हमको नहीं पता, फिर हो जाओ, बात खत्म। तो क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द इमेज and which film it belongs to and that film represent which particular movement of cinema। अब वो फिल्म जो है, कोई इटालियन फिल्म भी हो सकती है, फ्रेंच भी हो सकती है, चेक और स्लोवाकियन फिल्म भी हो सकती है, और जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट की भी फिल्म हो सकती है, फ्रिज लैंग की फिल्म हो सकती है, तो गोदार्ड का फिल्म हो सकता है, शेवरॉल हो सकता है। समझे आप मेरी बात? तो वो फिल्म का पोस्टर मास्टर इमेज वाली थ्योरी में आएगा कि क्या वो किसी फिल्म का मास्टर इमेज है, और है तो आप उसको आइडेंटिफाई करके ये बताइए कि इटालियन न्यूरलिज्म से कनेक्टेड है। तो इटालियन न्यूरलिज्म को पे सीधी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वो कोई फिल्म निकालेंगे न्यूरलिज्म की और उसका एक इमेज जो है, जो मास्टर इमेज है, जो हर किसी पढ़े लिखे आदमी को जिसने वो फिल्में देखी हैं उसको वो इमेज पकड़ में आएगा, और उसके बेसिस पे फिर वो बताएगा कि हाँ ये इटालियन न्यूरलिज्म का फिल्म है या चेक न्यू वेव है। अगर आपको ये समझ आ रहा है कि ये फिल्म जीरी मंजल की फिल्म है, अगर आपको ये समझ आ रहा है ये ओटकर वावरा की फिल्म है, आपको ये समझ आ रहा है कि मिलोश फॉर्मैन की है, ये नाम जिंदगी में पहली बार सुन रहे हो, तो भगवान जाने क्या होने वाला है। चलिए, ब्लैक एंड व्हाइट, बहुत खाली जगह पड़ी थी तो मैंने कुछ सोचा क्या करूं यहाँ पर, तो मैंने कुछ ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर जो है 2-3 फिल्मों के लगा रखे हैं वहां पर। अब थोड़ा टाइम बर्बाद होगा ढूंढने में, कहा है तो मैं कल थोड़ा ढूंढ के लाके रखूंगा पहले से ही। तो उसमें क्या है, जूल्स एंड जिम्स का एक फेमस है, दो लोग भाग रहे हैं, बल्कि एक लड़की बीच में जो है वो, जैसे कुछ साल पहले अभी कान फिल्म फेस्टिवल का एक पोस्टर बना था जिसमें ब्रिजिट बार्दो, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है गोदार्ड का कंटेम्प्ट, उसका शॉट जो है फिल्म के पोस्टर पे था, कान फिल्म फेस्टिवल के पोस्टर पे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और वो इंपॉर्टेंट इमेज है, तो आपको पता लगना चाहिए खट से उस इमेज को देखने के बाद कि ये गोदार्ड की कंटेम्प्ट फिल्म का इमेज है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन फ्रेंच न्यू वेव के बारे में पूछा जा रहा है। तो जब आपको इमेज ही नहीं पल्ले पड़ेगी तो क्या फ्रेंच न्यू वेव डिस्कस करोगे तुम, क्या इटालियन न्यूरलिज्म डिस्कस करोगे, और क्या तुम चेकोस्लोवाकियन न्यूरलिज्म डिस्कस करोगे, चेकोस्लोवाकियन न्यू वेव करोगे। और भी मूवमेंट है सिनेमा के, तो दो, मैं मेजर 3 या 4 की बात कर रहा हूं। तो अगर आप पकड़ नहीं पाओगे पहले स्टेप पे ही बाहर हो जाओगे। एडवर्ड मंच का पेंटिंग है ये क्राई, अगर वही नहीं पकड़ में आ रहा तो फिर बाकी का जर्मन एक्सप्रेशनिज्म के बारे में आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वो कनेक्ट नहीं पकड़ में आएगा। तो अगर आपको चाबी नहीं पकड़ में आएगी तो ताला नहीं खोल सकते। ध्यान रखना। ब्रिज के ऊपर वो पोस्टर है, ब्रिज है, ब्रिज पे दो लोग भाग रहे हैं, जूल्स एंड जिम्स का पोस्टर मास्टर इमेज है। जब भी इस फिल्म की बात होती है वही कहीं ना कहीं पोस्टर जो है, फोटोग्राफ दिख जाता है। तो जब आप इमेज को याद रखोगे तो आपको फिल्म भी याद रखना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अभी टेंशन मत लो, मैं कल ढूंढ के तैयार करके लाता हूँ, कहाँ है उसका पोस्टर जो है,
कहीं ना कहीं लगा रखा हो, कौन से पेज पे है? 190। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कह रहे हमारे पास तो किताब नहीं है, हम कहाँ से ढूंढे, कोई जरूरत नहीं है। कुछ जगह बच गई होगी तो आपने अगर फिल्मों के नाम देखे हैं कभी तो आपको पता रहेगा। कुछ जगह बची हुई थी तो मैंने क्या करा, सोचा मैं कुछ इमेज लगा देता। तो आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फिल्म फ्रॉम विच द बिलो इमेज इज टेकन। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो फिल्म देखी नहीं तो क्यों आपने इमेज लगा दिया और हमको परेशान कर रहे हो ये वो। तो आप जो है ये वाली जो फिल्म है ये जूल्स एंड जेम्स है, और ये जो लोग हैं ये 2 लोग हैं, टोपियों की लगी हुई है इसलिए पता नहीं लगता, बट ये पोज से पता लग जाता है कि ये फिल्म जो है जुलन है। इसके बाद एक मैंने नाइफ इन द वाटर का भी पोस्टर लगा रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट इमेज है नाइफ इन द वाटर की, रोमन पोलांस्की का जो फिल्म है, पूछी जा सकती है। इंगमार बर्गमैन की फिल्म है सेवंथ सील, ये जो चेस विद द डेथ उसका थीम है, तो वहां पे जो है ये इमेज जो है हर जगह बर्गमैन की जब भी बात होती है सेवंथ सील की ये इमेज जो है आ सकता है। तो ऐसी मास्टर इमेजेस फ्रॉम सिनेमा कुछ गूगल में सर्च करके आप देखोगे तो आपको कुछ और फिल्मों के भी इमेजेस आ जाएंगी। जैसे तारकोस्की की एक बुक है स्कल्पटिंग इन टाइम, तो उसकी एक फिल्म है जिसमें एक लड़का एक लड़की को किस कर रहा है और खाई है बीच में, उसको एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट करना है उस लड़की को, तो वो बीच में जो है हट करके उसको किस करता है। और फेमस इमेज है वो। तो जितनी भी ये फेमस इमेजेस हैं पूछ सकता है कोई भी आदमी कि बताओ कौन सी फिल्म से, बहुत बड़ी बात तो नहीं है। फिल्म का नाम ये हर जगह तुमने तारकोस्की की बुक है स्कल्पटिंग इन टाइम पढ़ी है, बायोग्राफिकल बुक, ये किताब पढ़ी है नहीं पढ़ी पढ़ो, उसके बाद आना नेक्स्ट ईयर। यहाँ आके तो पढ़ोगे नहीं तुम, यहाँ आके तो बियर पियोगे वहां पे, इसलिए पहले ही पढ़वा लेते हैं तुमसे तो पहले से ही पढ़िए। वहां जाके लोग ओल्ड मॉन्क की पीते हैं आधे लोग, 3 साल का कोर्स 6 साल हो और लेट जाते हैं। पहले से पढ़ के आओ, इसलिए वो फिल्म का नाम पूछा जा सकता है। तो मास्टर इमेजेस करके जो है, ठीक है जी। तो 3 इमेजेस मैंने यहाँ दे दी, नाइफ इन द वाटर, जूल्स एंड जेम्स एंड सेवंथ सील। ऐसी और भी बहुत सारी इमेजेस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बीच बीच में जब पोस्टर दिखाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये पूछा जा सकता है, ये मास्टर इमेज है अगर उसने वो पोस्टर पे इस्तेमाल की होगी तो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे थोड़ा खेल, अभी और चल रहा है आगे। हाँ जी, आगे अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और है। क्वेश्चन नंबर 28, अभी टाइम है हमारे पास, घबराइए मत। ऑल ऑफ द अबोव, बड़ा अजीब सा मैंने आंसर बनाया इसका, ऑल ऑफ द अबोव, क्योंकि ये द लुचियन ऑफ विस्कॉन्टी की एक फिल्म है जिसके ऊपर इंडिया में कॉपी हुआ है, तो मानते नहीं है बट किया है। संजय लीला बंसाली की एक फिल्म है, व्हाइट नाइट से उसने उठा के सांवरिया बना दी, व्हाइट नाइट का कॉपी है। व्हाइट नाइट ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, सांवरिया का। लुचियन ऑफ विस्कॉन्टी डायरेक्टेड द लेपर्ड बेस्ड ऑन अ नॉवेल बाय गिस्विक तुमाई दी फलाना डिमका हु प्लेड द लीड। उसमें 3 लोग इंपॉर्टेंट हैं और तीनों जो हैं अपने आप में, इसमें जो एक्ट्रेस है क्लौदिया कार्नेल, एक चीज लिख लो मैं भूल जाऊंगा बार बार, एक पोस्टर है क्लौदिया कार्नेल का जो कान फिल्म फेस्टिवल का पोस्टर है, उसको मैंने शायद कांस वाले उसके अंदर एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्रेस वाज देयर ऑन द कान फिल्म फेस्टिवल ऑफ द ईयर फलाना डिमका। अभी 2-3 साल पुराना जो है पोस्टर है, उसके अंदर येलो कलर का पोस्टर है, वो सॉरी रेड कलर का पोस्टर है, उसमें लड़की जो घूम रही है वो क्लौदिया कार्नेल है। यहाँ पर जिसने कोई अगर कोई आदि फिल्म देखी होगी इटालियन फिल्में या कुछ जर्मन फिल्म देखा होगा, तो एक जर्मन फिल्म है फ्रिट्ज गेराल्डो वर्नर हेrzog का, उसके अंदर क्लौदिया कार्नेल ने लीड कैरेक्टर प्ले किया है लॉस किंस्की के साथ। तो इसलिए ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, तीनों लोगों ने काम किया है उसके अंदर। तो ऑल ऑफ देम, कभी कभी ऐसा होता है ऐसी फिल्म होती है जिसमें 2-3 लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, एक आदमी नहीं होता है, तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। फिर दोबारा से मैं याक तातीक पे आ गया। वन ऑफ द बेस्ट नॉन फ्रेंच कॉमेडियन इज मिस्टर होलोज हॉलिडे हु डायरेक्टेड दिस मूवी एंड प्लेड द लीड, राइट। तो उसने क्या करा अभी इसमें कि वेकेशन ऑफ फ्यूलो हॉलिडे जो है डाल के उसकी फिल्म का नाम डाल दिया, हु डायरेक्टेड द मूवी एंड प्लेड द टाइटल रोल, ऑब्वियसली द सेम गाय डी, याक तातीक। तो क्वेश्चन बनाने के अलग तरीके हो सकते हैं कि फिल्म का नाम बता दिया उसने, कैरेक्टर का नाम बता दिया, डायरेक्टर ने किए ये पूछ लिया, फिल्म के एक्टर का नाम पूछ लिया। तो थोड़ा सा ये जो है एक अवेयरनेस जो है होनी चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। कौन सा क्वेश्चन है ये?
30th को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा बाद में बताऊंगा मैं। 31st पे आइए। Which film won the Silver Bee in the Berlin and tells the story of a singer struggling to save her son? Important film है, लिख लो। 31 मार्क करो उसको। इसके ऊपर कहीं ना कहीं पीछे बांदौर भी है फिल्म को, मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे अंदाजा है। तो फेलिसिटे करके जो फिल्म है, इसमें एक ब्लैक एक्ट्रेस है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ये वही फिल्म है। और इसको शायद कांस में बांदौर भी है, जब बांदौर वाले वो इमेजेस आएंगी ईयर के हिसाब से चलेंगे आगे, जो है फ्रेंच फिल्म में कहीं पे, वहां पे इसका पोस्टर भी मैंने लगाया हुआ है, मुझे याद है अच्छी तरीके से। तो मुझे हाई रिजोल्यूशन पोस्टर चाहिए था और मिल नहीं रहा था वो, तो इसलिए मुझे नाम भी याद है अच्छी तरीके। हाँ जी, आगे आ जाइए थोड़ा सा। ये कौन सा क्वेश्चन है? 31, 32। बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है। कोई पागल आदमी बैठ गया जिसको वैन गॉग से प्रेम हो, वो इस फिल्म को क्वेश्चन को डाल सकता है। क्यों? 31 फेलिसिटी, FELICIT। 32 which film awarded best animation film at the European Film Academy is the world's first fully painted feature film? बहुत सर फोड़ना पड़ता है पेंटिंग करने के लिए, बहुत सारी इमेजेस हैं उसमें। तो वैन गॉग की जितनी पेंटिंग की इमेजेस हैं उसी को लेके फिल्म बना हुआ है। तो ये फिल्म का जो है कौन आदमी डायरेक्टर है, ये पूछा जा सकता है। मैंने क्या पूछा है इसके अंदर? विच फिल्म अवॉर्डेड दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली पेंटेड फीचर फिल्म, नाम पूछा है मैंने। तो विंसेंट लविंग विंसेंट वैन गॉग की लाइफ के ऊपर ये फिल्म है। एक किताब है लस्ट फॉर लाइफ, लिख लो, भूल जाऊंगा मैं। लस्ट फॉर लाइफ विंसेंट वैन गॉग की लाइफ के ऊपर बुक है, वो पूछी जा सकती है किस राइटर ने लिखी। पीछे किताबों के नाम दिए हुए हैं मैंने, वहां पे मार्क करके रखना। हाँ जी, ये भी पूछा जा सकता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट पूछा जा सकता है कि वैन गॉग म्यूजियम कौन सी सिटी में लोकेटेड है। सिंपल है, बट अगर नहीं पता तो डिफिकल्ट। सबसे ज्यादा लंबी लाइन मैंने अपनी जिंदगी में किसी जगह के आगे देखी है तो वैन गॉग म्यूजियम के आगे देखी है। 1000 लोग लाइन में लगे हुए थे उस दिन, जिस दिन मैं वहां पर गलती से पहुंच गया। तो मैंने कहा मुझे नहीं जाना। पता लगा खट 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 10 मिनट में सब लोग अंदर। मतलब ऐसे नहीं कि सब 1000 लोग घुस गए एक साथ। तो वो सबसे लंबी विंसेंट वैन गॉग एम्स्टर्डम के अंदर म्यूजियम है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। जैसे एक और म्यूजियम है खतरनाक, लूव म्यूजियम, LUVRE, कौन सी सिटी में लोकेटेड? बताओ, अंदाजा मत लगाना, पता हो तो बताना वरना मत बताओ। स्पेन में, किसी ने बोला स्पेन कंट्री का नाम है, बहुत अच्छी बात है, मैं सिटी पूछा कौन सी सिटी में, अंदाजा लगा के बोलो। चलो, मद्रिद, पेरिस किसने बोला? तो और फ्रेंच आदमी तो पेरिस में होगा, किसने बोला? अंदाजा लगाना है, बट सही है, पेरिस में ही। उसके अंदर खास बात क्या है म्यूजियम की? तो बहुत खतरनाक म्यूजियम है, 10 दिन चाहिए होते हैं म्यूजियम को देखने के लिए। उसमें खतरनाक चीज क्या है? मोनालिसा का जो पोर्ट्रेट है, वो लियोनार्डो दा विंची का, सब लोग फोटो खिंचवाते हैं, मैंने भी खिंचवाई। खतरनाक म्यूजियम है वो, 10 दिन चाहिए कम से कम उस म्यूजियम को देखने, इतना खतरनाक। फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर बहुत सारे म्यूजियम है, उसमें से सबसे लंबी लाइन इसी के आगे लगती है, लोग के आगे। तो लूव म्यूजियम भी पूछा जा सकता है, LUVRE, स्पेलिंग चेक कर लेना थोड़ा सा। पेरिस के अंदर है, क्यों फेमस है? मोनालिसा। मोनालिसा वाली जो पेंटिंग, विंची का जो पेंटिंग है, वहां ओरिजिनल, डुप्लीकेट नहीं कि इंडिया में डुप्लीकेट की तरह उठा के लगा दी वहां पे जाके, ओरिजिनल पेंटिंग है वहां पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इल पोस्टिनो, ये वही आदमी है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, सिनेमा पारादीसो के अंदर कोई दूसरा हीरो था। The exiled Chilean poet Pablo Neruda helps a local to conquer the heart of his beloved in Il Postino, Cinema Paradiso, Madritino, none of the above। वो फिल्म है Il Postino। इसका हीरो अभी तक नहीं पूछा है, कहीं ना कहीं पूछूंगा मैं। ये वही आदमी है जो सिनेमा पारादीसो में प्रोजेक्शनिस्ट का काम करता है। इस फिल्म का जो हीरो था, दिमाग में मेरा नाम नहीं आ रहा है, बट याद आएगा मुझे, मेरा कहीं लिखा हुआ है उसका नाम। हाँ जी, आगे आ जाइए। एक्टरों वाले में नहीं है वो, उसका चलो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं होगा। लविंग विंसेंट इज डायरेक्टेड बाय, देखो अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछ लिया 34 के अंदर, डायरेक्टेड बाय। तो उसमें 2 लोग थे, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? बोथ ऑफ देम। 34C, बोथ ऑफ देम का क्या मतलब हुआ? क्वेश्चन इनकम्प्लीट, क्वेश्चन इनकम्प्लीट, नाम तो दिए ही नहीं मैंने।
नाम दिए? अरे हाँ, ए एंड बी, सॉरी क्वेश्चन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव। ठीक है जी, बोथ ऑफ दैम। सी है इसका आंसर, अलग अलग लिख दिया जिससे लंबा चौड़ा ना हो। हाँ जी, नेक्स्ट। Which French German Austrian co-production received multiple awards including Palme d'Or and the Oscar for the best foreign language? आप सब लोग बता सकते हैं इसका नाम। हम चलिए आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन तो मैं रट गया, आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 2-in-1 खेल जो है Palme d'Or और वो इतना आसानी से नहीं होता है। मिकल इनके का फिल्म है। In which film director Pedro Almodovar does the Penelope Cruz plays the lead role of a pregnant nun? ये भी एक important question, 36 मार्क करो। कुछ लोग वॉल्वर लिख के आएंगे क्योंकि वॉल्वर भी एक फेमस फिल्म है जो उसने पेड्रो अल्मोडोवार के साथ किया है, बट वो फिल्म है ऑल अबाउट माय मदर। मार्क कर लेना ध्यान से, पोस्टर देख लेना इसका, इससे थोड़ा याद हो जाए। पूछा जा सकता है क्वेश्चन। देखो क्या होता है, किस आदमी को क्या चीज पसंद है उस पर डिपेंड करता है, किस आदमी का क्या फेवरेट है। किसी का पेड्रो अल्मोडोवार है, उसमें चलो इसी पे क्वेश्चन होगा। कौन आदमी बैठा हुआ है पेपर बनाने, उसका माइंड सेट क्या है, व्हाट ही लाइक्स व्हाट ही डोंट लाइक, उसके ऊपर। मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, सब लोगों के नाम जो है ये उनके के जितने भी नाम हैं सब इकट्ठे किए हुए हैं, बच्चे कुछ आगे हम लोग कवर करेंगे। बी 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 ऑल अबाउट माय मदर बहुत फेमस फिल्म है इसका। वॉल्वर भी फेमस है, ऑल अबाउट माय मदर। 2 or 3 things I know about her, एक और फेमस फिल्म है, गोदार्ड का फिल्म है वो, 2 or 3 things I know about her, बट वो उसी टाइप का एक इसका भी फिल्म है। हाँ जी, ये 37वां जरा ध्यान से पढ़िए थोड़ा सा, ये एनिमेशन टाइप की एक फिल्म है, ऊप्स नो इज गॉन। बहुत पॉपुलर रही है, बहुत सारी कंट्रीज में दिखाया गया है इसके अंदर, तो छोटे छोटे करेक्टर। इसके आंसर में शायद मैंने इसका पोस्टर लगाया हुआ है 37, देखो जरा आंसर के पीछे को लगाया हुआ पोस्टर इसका, नहीं लगाया, कहीं दिया हुआ है मैंने, इसका आंसर दिया हुआ है। इसका आंसर जो है 37 में कहीं ना कहीं पोस्टर जो है मैंने निकाला था, तो कहीं ना कहीं लगा होगा, क्यों नहीं लगा यहाँ पर पता नहीं मुझे, कहीं और बाद में लिखा हुआ है। हाँ जी, आ जाइए दोबारा से नीचे की तरफ, 38 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30 भी बहुत, ये रशिया का बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टर है, प्राजनोव करके अजीब सा प्रोनाउंसिएशन है इसका। Which Soviet director in 1960s and 70s made several personal and experimental film which was subsequently forbidden to direct films and sentenced to hard labor? Praznov, सब रशियन लोग हैं और इम्पोर्टेंट लोग हैं। हाँ जी, 39, क्वेश्चन नंबर 39। What best characteristic the films of Margaret Dura? मार्गरेट डूरा की फिल्में जनरली जो है, एक राइटर भी है ये, बट इसने फिल्में भी डायरेक्ट की है। स्टोरीज अबाउट कॉम्प्लेक्स लव स्टोरी, लव अफेयर प्रेजेंटेड इन ए स्लो लैकोनिक स्टाइल। ये किस टाइप की फिल्में बनाती है ये? लव अफेयर। 39 का आंसर क्या दिया हुआ है हमने? लव स्टोरी। चलो, पॉलिटिकल फिल्म, प्रोपेगेंडा फिल्म, वॉर फिल्म, ये सब आंसर नहीं है। Which director directed the movie of Ray Bradbury's novel Fahrenheit? बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो भाई, तोते की तरह लिख लो, Fahrenheit 451। तूफान का बहुत फेमस फिल्म है ये। तो हमने क्या पूछा? नॉवलिस्ट का नाम पूछ डाला। नॉवलिस्ट के नाम भी आ सकते हैं, जैसे मैडम बोवारी पूछ लिया था केतन मेहता का, क्योंकि केतन मेहता का इंडियन कनेक्शन है, बट मैडम बोवारी पूछा जा सकता है, तो ये भी पूछा जा सकता है, Fahrenheit 451। हाँ जी, उधर आ जाइए। सीलेक्ट, हमने ये भी रख लिया, देखो क्वेश्चन सीलेक्ट उस दिन बताया था मैंने आपको, इज एसोसिएशन ऑफ फिल्म स्कूल। 3 साल पहले क्वेश्चन आया था, ये दोबारा से भी आ सकता है, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर एफटीआई की वेबसाइट पे लोडेड नहीं है, जिस साल ये आया था सीलेक्ट है। क्या ट्रूफो ए 40 का ए लिखा हुआ है पीछे, करेक्ट है वो। फिब्रिस्की, ये मैंने बताया था आपको कल, फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन। फिब्रिस्की इज ए एसोसिएशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स। बड़ा सिंपल सा है, बट पूछ सकते हैं। हर फिल्म फेस्टिवल में फिब्रिस्की की जूरी होती है। ठीक है जी, आगे बढ़िए। विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स ऑन मार्को बुलर। क्यों पूछ लिया मैंने मार्को बुलर का? क्योंकि इंडिया में ये आदमी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इंटरनेशनल आदमी फेस्टिवल सर्किट का पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि ही वाज द डायरेक्टर ऑफ वेनिस फिल्म फेस्टिवल, यस। ही वाज द डायरेक्टर ऑफ लोकार्नो, यस। ही वाज द डायरेक्टर ऑफ कान फिल्म फेस्टिवल, नो। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या लिखा हुआ है हमने? 43 का सी करेक्ट।
फ्रांस में डायरेक्टर नहीं बनाया वो आदमी। हाँ जी। 44 फेडरिको फेलिनी नेवर वर्कड विद द एक्ट्रेस। ये मैंने क्वेश्चन क्यों बनाया? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बनाया क्योंकि जो उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था तो इट वाज गिवन बाय द हैंड्स ऑफ सोफिया लॉरेन एंड ही हैज नेवर मेड ए फिल्म विद सोफिया लॉरेन। पहला मेरा क्वेश्चन है, जिस आदमी से तुम्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर मिल रहा है उसी के साथ आपने काम नहीं करा। आपकी कंट्री की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस थी अपने जमाने की। तो आज जो है खत्म होता है सोफिया लॉरेन के नाम पर। सोफिया लॉरेन के हस्बैंड का नाम जो मैंने बताया नहीं अभी आप तो, हु वाज अ फेमस प्रोड्यूसर। तो ढूंढ लेना, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट ही वाज अ वेरी वेरी फेमस प्रोड्यूसर। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन किसने? It's called Carlo Ponti. Carlo Ponti has made The Contempt of Jean-Luc Godard's film, and he has produced many more films also. So that's it. मैं पूछता हूँ, क्वेश्चन है कहीं ना कहीं उसका इधर उधर, बट वो याद आ जाएगा नाम तो मैं बता दूंगा आपको। क्या ब्लैक एंड व्हाइट वाला क्वेश्चन? हाँ, तो तुम खुद भी घर पे जाके कुछ काम करो, कैसे पता लगेगा तू फेल हो गया वो पास हो गया? जो आदमी घर में आके काम करेगा वो पास होगा। खुद बनाओ, खुद ढूंढो। तेरा आंसर इसके आंसर से अलग होना चाहिए। इसको मैंने लिखवा दिया, तूने भी वो चेप दिया, दोनों के बाद पहुंच गया, लोग डलवाई थी। So, okay, guys, this is 12:38. We can move to another one also because still we have a time. So, if you have a quick question, you can ask it. Otherwise, I'll start the new video. Okay. So, just give me a moment. $40, 51, 51. We were at the post number, page number 51. So we were talking about the Federico Fellini received the Oscar for the Carlo Ponti. The name of that person is called Carlo Ponti, who is the husband of Sophia Loren, who produced the film with Jean-Luc Godard called Contempt. So Carlo Ponti के ऊपर मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है कहीं पे, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था ये रखता। Federico Fellini received the Oscar for lifetime achievement in the hand of Italian actress Sophia Loren. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस आदमी के साथ उसने काम नहीं किया अपने जीवन में कभी, वो जो उसकी वाइफ है उसका नाम है गुलिता मसीना। ये जो लास्ट वाला नाम है, ये गुलिता मसीना कौन है? जो उसके लास्ट स्टार्टर के अंदर जो हीरोइन है उसका नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसकी 4-5 फिल्मों में बीवी है तो काम किया होगा, तभी बीवी हो सकती है, वरना बीवी नहीं होगी। तो गुलिता मसीना के साथ जो है लास्ट स्टार्टर फिल्म है उसकी। उसके बाद एक और फिल्म है जिंजर एंड फ्रेड, और 2-3 फिल्में और हैं। ये सब इंपॉर्टेंट फिल्म है, जिंजर एंड फ्रेड, लास्ट स्टार्टर, सबसे इंपॉर्टेंट। नीना रोता। नीना रोता कौन है? कौन बताएगा? सब लोग सो रहे हो। नीना रोता कंपोजर है, इसका म्यूजिक कंपोजर। फेलिनी की जितनी भी फिल्में हैं उसमें नीना रोता का म्यूजिक है। ऐसे उटपटांग के नाम आने वाले हैं, ध्यान रखना वहां पे। सोफिया लॉरेन सबों को पता है। एनिटा एकबर्ग कौन है? एनिटा एकबर्ग बेसिकली स्वीडिश एक्ट्रेस हु बिकेम स्टार बिकॉज ऑफ द फेलिनीज ला डॉल्चे वीटा। इस साल जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है यूरोप का, who passed away last year, who has composed for many films of Italian films, of course, and one of the famous film is Cinema Paradiso. Enrico Morricone. Enrico Morricone passed away last year, और उसने काफी इंपॉर्टेंट फिल्में जैसे वेस्ट साइड, गुड बैड एंड अगली, फ्यू डॉलर मोर, ये जितनी वेस्टर्न फिल्में हैं इटालियन डायरेक्टर की, वो सारी की सारी उसने कंपोज की है। तो एनरिको मोरिकानो के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। स्वीट लाइफ ऑफ इटली फोटो मैंने लगा रखा है आंटी जी का पीछे, पानी के अंदर वो खड़ी है मार्सेलो मास्ट्रोनियोनी के साथ, कहीं एक आइडेंटिफिकेशन है वहां पर, ध्यान रखना। तो एनिटा समझ आ गया, सोफिया लॉरेन समझ आ गया, सबों को पता ही है सोफिया लॉरेन। तो लोग सोफिया लॉरेन इसलिए लगा सकते हैं कि पता है सबों को, नाम पॉपुलर नाम है, बट ऐसा हो सकता था कि कोई उटपटांग का और नाम डाल देते तो दिक्कत हो जाती। तो खास तौर पे डायरेक्शन के जो लोग हैं उसमें एमएसक्यू बन सकता है एनरिको मोरिकानो के ऊपर। क्या एनरिको मोरिकानो वाज ए म्यूजिक कंपोजर? करेक्ट। एनरिको मोरिकानो डिड द म्यूजिक फॉर सिनेमा पारादीसो? करेक्ट। एनरिको मोरिकानो डिड द म्यूजिक फॉर फलाना ढिमका, जो उसने नहीं किया है, ठीक है। एनरिको मोरिकानो डिड द म्यूजिक फॉर गुड बैड एंड अगली, डायरेक्टेड बाय सर्जी लियोन, यस। तो
MSQ बन सकता है क्योंकि डायरेक्टर के ऊपर है, ये डायरेक्शन से कनेक्टेड है, म्यूजिक कंपोजर डायरेक्टर के साथ काम कर सकता है, करता है, तो इसलिए डायरेक्शन स्टूडेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनरिको मोरिकानो के ऊपर बन सकता है MSQ कोई जमीन में से अलग से निकल के नहीं आएंगे, इन्हीं चीजों से बनेंगे घुमा फिरा के। अब कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, दैट नोबडी कैन से एनीथिंग। नाम है इसलिए जो है, अगर ये क्वेश्चन ऐसे बन जाता, फेडरिको फेलिनी नेवर वर्क विद व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग एक्ट्रेसेस, तो तुम सब लोग गलत लिख जाते, क्योंकि सोफिया लोरेन ने तो काम किया ही होगा, सबों को पता है, यही नाम सबों को पता है। जिसको नहीं पता वो बिहार में खेती कर रहा है, अदरवाइज सबों को पता है। ये नहीं पता होगा किसी को एनिटा एक बात, जिसने अनटिल यू नो द ला डॉल्चे वीटा। ये एफटीआई उम्मीद करता है तुम लोगों से कि ये सब नाम तुम्हें पता होने चाहिए। उम्मीद करने में कोई पैसे तो नहीं लग रहे, तुम्हें क्या लगता है, कर लो उम्मीद। तुम्हें नहीं पता है तुम्हारी प्रॉब्लम, एफटीआई को ये उम्मीद है कि आपको ये सब नाम जो है पता होने चाहिए। सिनेमा समझने का काम, सिनेमा बनाने का काम हम बताएंगे आपको, बट अगर तुम्हें नाम ही नहीं पता तो यहाँ बताओ, कहीं और जाओ। Who played the Malina? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who played the Malina? मोनिका बलूची, क्लॉडिया कार्नेल, गिना लोलोब्रिगिडा, नन ऑफ द अबव। तो मोनिका बलूची ने मलिना, ये मलिना किसने डायरेक्ट किया है, नाम बताओ। गुस्सिप जी तादनतो, वही आदमी जिसने सिनेमा पारादीसो पहले बनाई थी, उसका दूसरा फिल्म जो है वो है। Who directed the famous Italian film Malina? गुस्सिप जी तादनतो। आगे आ जाइए। सिनेमा तक इन फ्रांस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं चूज करूं इस पूरे 2 पेजेस में से, तो ये वाला हेनरी लॉन्गवा, ये नाम रख लो, तोते की तरह, आज 10 बार बोलोगे तब समझ आएगा। हेनरी लॉन्गवा, सिनेमा तक फ्रांस की आर्काइव है, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया। एनएफएआई का डायरेक्टर कौन है, ये गूगल में ढूंढ के लिख लेना, क्वेश्चन है भी, यहाँ लिखा हुआ नहीं है मैंने। एनएफएआई, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया का डायरेक्टर कौन है। एफटीआई का डायरेक्टर नहीं पूछेंगे क्योंकि सबको पता है, तो पूछेंगे पास में एक और खतरनाक बिल्डिंग है जिसका नाम है नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, हु इज द डायरेक्टर ऑफ एनएफआई। हो सकता है पुराने डायरेक्टरों में से 4 नाम और डाल दिए जाए और पूछा जाए व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए एनएफआई डायरेक्टर इन द पास्ट, ये भी पूछा जाए। ऐसा नहीं कि लास्ट का रट लिया बाकी सब भूल भाल गए, समझे क्या नहीं। कुछ जितना टेढ़ा मेढ़ा पेपर बनाने का मूड किसी का होगा वो उतना ही कॉम्प्लेक्स कर देगा, बट कॉम्प्लेक्स नहीं है क्वेश्चन। एनएफआई के अंदर पीके नायर के बाद 4 डायरेक्टर है, रट लो तो किधर नाम, बात खत्म। तो हेनरी लॉन्गवा इज द गाय हु बिल्ड अप द सिनेमैटेक। सिनेमैटेक क्या है, फ्रांस का नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया जैसे है ऐसे ही सिनेमैटेक है वहां पे। और बाकी हेनरी हेनरी डाला हुआ है मैंने इसीलिए कंफ्यूजन डालने के लिए कि तुक्का लगा दो, हो सकता है पता लगा ना होता, ये भी ध्यान रखना। हेनरी 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 क्या मतलब है, कोई ना कोई तो हेनरी होगा, कंफ्यूजन। 3 हेनरी के नाम, चौथा पता लगा आंसर उसका। अगर मैं और डाल देता हेनरी कार्टियर बेसो, हेनरी मतीस, हेनरी कुछ पीटर, तो मैं क्या पता हेनरी पीटर कौन है। उसका आंसर है हेनरी लॉन्गवा, तो जिसको पता है वही लगाएगा, तुक्केबाजी में मत फंस जाना। हेनरी हेनरी 3 है तो उसमें से कोई ना कोई तो हेनरी होगा, मैंने इसलिए लिख दिया है कि तुम्हें नाम याद हो जाए। हेनरी लॉन्गवा। व्हाट इज कायदू सिनेमा, ये फ्रांस की सबसे इंपॉर्टेंट मैगजीन थी 60s की, जिसमें गोदार, शेवरॉल वगैरह ये सब लोग जो है एडिटर थे, लिखते थे वहां पर मैगजीन। फेमस कायदू सिनेमा मैगजीन है, फ्रेंच फिल्म स्कूल, फ्रेंच मैगजीन। अब ये तो थोड़ा कॉमन सेंस की बात है, फ्रेंच है तो फ्रेंच ही होगा, इटालियन तो नहीं हो सकता। उसने फ्रेंच सिनेमा डाला, फ्रेंच फिल्म स्कूल डाला, एसोसिएशन ऑफ फिल्म फ्रेंच फिल्म डायरेक्टर्स, ऐसा भी हो सकता है, कुछ पटांग है, कुछ एसोसिएशन भी हो सकती है। जैसे सीलेक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन है, वहां पर एसोसिएशन है वो फ्रेंच फिल्म इंटरनेशनल फिल्म स्कूल का, फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल का भी नाम होता है। तो यूपी बिहार का आदमी होगा तो तुक्का लगा के कुछ कर देगा, बट जो इसको पता होगा ये क्या बवाल है उसको मैगजीन को टिक करके आएगा। सो इट्स अ फेमस मैगजीन फ्रॉम 60s, अभी भी चलती है, ऐसा नहीं बंद हो गई हो। इन द इटालियन फ्रेंच कल्चर सेंटर जाओगे औरंगजेब रोड के ऊपर, उसका नाम कुछ चेंज हो गया है अभी, तो वहां पे मैगजीन के दर्शन हो सकते हैं, और किसी जगह का मुझे पता नहीं। In the Italian film Il Postino, the postman, the real life Chilean poet Pablo Neruda character is played by Philip Norier. फिलिप नॉरियर वही आदमी है जो सिनेमा पारादीसो के अंदर प्रोजेक्शनिस्ट का रोल किया था। बड़ा आदमी है फिलिप नॉरियर, छोटा मोटा आदमी नहीं है। सिनेमा पारादीसो फिल्म इटालियन है, सिनेमा पारादीसो फिल्म इटालियन है, फिलिप नॉरियर फ्रेंच एक्टर है, ध्यान रखना, थोड़ा गड़बड़ मत कर लेना कहीं लाइफ में। आगे आ जाइए, उसमें हीरो कोई और है फिल्म के अंदर, वो नहीं है फिलिप नॉरियर
जो है मैंने डाल दिया है, तो इसलिए थोड़ा पता रहना चाहिए पोस्टमैन का कैरेक्टर किसने किया है। पोस्टमैन का कैरेक्टर उसने नहीं किया है, पोस्टमैन का कैरेक्टर मैसिमो तुरिसी ने किया है। तो ध्यान रखना, पोस्टमैन पूछा जा रहा है या पाब्लो नेरूदा पूछा जा रहा है। तुमने पाब्लो नेरूदा का क्वेश्चन याद आ गया, तुम्हें पोस्टमैन भूल गया, तो पता लगा पोस्टमैन ही पूछ लिया। पोस्टमैन का इन पोस्टिंगों में पोस्टमैन का कैरेक्टर पूछना चाहिए, क्या पूछ रहे हो फालतू का, पर तो कुछ भी पूछ सकते हो, तो पता होना चाहिए। बट पाब्लो नेरूदा बड़ा आदमी है, तो इसलिए उसके ऊपर किस आदमी ने रोल किया वो भी क्वेश्चन बन सकता है। बट पोस्टमैन का कैरेक्टर किसने किया भैया, वो भी तो बताओ। तो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन, ये अगला एक मैंने बड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन बनाया, व्हाट इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन सिनेमा पारादीसो एंड इल पोस्टिंग। कॉमन फैक्टर क्या है कि दोनों फिल्म के अंदर फिलिप नॉरियस ने काम किया। बात both the films are directed by Gosip Karnato. No, Philip Norius acted in both the films. Yes, B is the answer. Both are the Oscar-winning film in the category of best foreign language. No. Both are the based on novel by the same author. No. देखो confusion कैसे पैदा कर देता है, तो पता होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर। ये MSQ का भी क्वेश्चन हो सकता है। बहुत सारे MCQ के जो क्वेश्चन हैं, अगर आप ध्यान से he played this, he did not play, वो नॉट लगा दोगे तो वो क्वेश्चन इनवैलिड हो गया, उसमें अगर लगा दिया तो वो वैलिड हो गया। तो वो MCQ के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो अपने आप में MSQ भी बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलरली डायरेक्शन के लोग अगर यहाँ बैठे हुए, और वो ऐसा नहीं है कि वो एक्टिंग से नहीं पूछा जाता, क्योंकि जनरल अवेयरनेस है, डायरेक्टर का नाम है, फिल्म का नाम है, एक्टर का नाम है। एक्टर एक्टिंग में है तो एक्टर से कनेक्टेड कुछ आएगा। एक्टर के बारे में पूछा जा सकता है, इस फिल्म में इस एक्टर ने किया, उस फिल्म में इस एक्टर ने किया, किस एक्टर ने किसमें किया नहीं किया। तो एक्टर से रिलेटेड एक्टिंग के अंदर MSQ क्वेश्चन इसी टाइप से बनेगा जो मैं अभी आपको बताया फिलिप नॉरियस को लेकर। एक्टिंग में ही बन सकता है क्योंकि एक्टर है, वो एक्टर से कनेक्टेड बात को होगी। ऐसा नहीं साउंड रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, तरीके से तुक्केबाजी कुछ नहीं लगने वाली, वो कुछ भी हो सकता है। Which one among the following option is false about the unbearable lightness of being? ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा है? ऊटपटांग की 50,000 फिल्में हैं, मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा है? इसलिए पूछा है कि इसके अंदर जो स्क्रीन प्ले राइटर है वो वही आदमी है जिसने पीटर ब्रूक की महाभारत लिखी है। जॉन क्लॉकाइये, ये आदमी जो है लास्ट ईयर गुजर गया है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। जॉन क्लॉकाइये, पीटर ब्रूक का महाभारत लिखा है उसने, और ये वाला जो फिल्म है बुनवल के साथ काफी फिल्में लिखी हैं, और ये लाइटनेस वाला फिल्म लिखा। इसलिए मैंने क्वेश्चन, इट इज डायरेक्टेड बाय दिस, यस, इट इज बेस्ड ऑन द नॉवेल ऑफ मिलन कुंद्रा, यस, स्क्रीन प्ले बाय दिस, इट स्टार्ड डेनियल डे लुइस बट नॉट जूली विटॉस। जूली विटॉस ने काम किया है, डेनियल डे लुइस ने काम नहीं किया। और करेक्ट आंसर क्या है इसका? डी। देख लो एक बार, चेक कर लो 52 का डी है कि मैं बोले जा रहा हूं वैसे ही। 52 डी, यस करेक्ट। आगे आइए नीचे। 53, which among the following film is directed by Louis Buñuel and Salvador Dali? मैंने पहले बोला था कि ये they both started collaboration together, but वो कौन सी फिल्म में कोलैबोरेशन चालू हुआ है वो जरा बताओ मुझे। तो उसका नाम है अंशे आंदुलू डी। डी एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है जिसके अंदर ओपनिंग शॉट में एक आंख खुलती है और एक रेजर आता है और आंख जो है कट जाती है। खून नहीं निकलता उसमें, एक अलग बात है, आंख कटती है, खून भी निकलता है। प्लास्टिक की आंख नहीं थी, असली आंख थी। तो अंश आंदुलू बड़ी फेमस फिल्म है उसकी, ये पता होनी चाहिए तुम लोगों को, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि इधर-उधर से घूमते हुए आ गए 4,000 रुपए मम्मी की जेब से काटे और भर दिया फॉर्म और आ गया। Which among the following film is directed by Louis Buñuel and Salvador Dali? अंश आंदुलू। आगे आ जाइए, थोड़ा सा स्पीड से काम कर रहे हैं जिससे हम बाद में और थोड़ा सा रिवीजन कर पाए कुछ चीजों का। बट मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोल रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा स्पीड आप देके थोड़ा बोलना, थोड़ा रुको। Which director among the following is known of long duration take? ये क्वेश्चन आ चुका है, अभी कुछ दिनों पहले आया था, 1-2 साल पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मुझे याद आ गया। तुम लोगों को पता नहीं है क्योंकि तुम FTI का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, FTI का एग्जाम मैं देने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है। ये क्वेश्चन आया था मल्टीपल चॉइस के अंदर, तुम लोग ऐसे बैठे हो एकदम गुमसुम जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। द्वारा आंख खोलो, देखो, क्वेश्चनों को पढ़ो। ये क्वेश्चन आया था अभी 2-3 साल के अंदर अंदर। Which director among the following is known for long duration takes? Long duration, देखो दो चीजें होती है, long shot। Long shot का मतलब है close up, mid shot, long shot। एक वो long shot है in terms of magnification, एक long duration shot, दोनों अलग अलग चीजें। long duration का मतलब 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। सिंगल शॉट पे भी फिल्म बनी है, बता दो कौन सी बनी? चलो लगे आता हूँ। बैटमैन और फेमस फिल्म नॉर्थ बाय नॉर्थ वेस्ट बनी है, वैसे तुक्का मार रहा है। रोप
रोब हिचकॉक के अंदर जो है एक्चुअली उसमें कट है और जॉइंट लगा हुआ है, पता नहीं लगता कहाँ है वो, एक्चुअली रोप है वो। बट एक रशियन फिल्म है, रशियन आर्क, पूरा का पूरा 90 मिनट का सिंगल टेक रशियन आर्क फिल्म है, कांस के अंदर दिखाई गई है। एक म्यूजियम के अंदर पूरा का पूरा खेल चलता रहता है। पूछा जा सकता है ये नाम, याद कर लो, रोप फोप नहीं पूछेगा कोई। फिल्म which was in the Cannes Film Festival of this particular year, which is a single shot based about the Russian museum फलाना टिमका, वो रशियन आर्क नाम है उसका। तो लॉन्ग ड्यूरेशन स्टीवन ज़ाबो की फिल्म में 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट का टेक होता है। निकोलस यांचो की फिल्म में नहीं, सॉरी, स्टीवन ज़ाबो की फिल्म में नहीं होता है, निकोलस यांचो की फिल्म में होता है। वो निकोलस यांचो की फिल्म के अंदर 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट 11 मिनट तक का टेक भी होता है। 4-4 मिनट के तो बहुत सारे टेक होते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि 4 मिनट मैगजीन जो है, पहले 35 इनकी मैगजीन जो है 4 मिनट की मैगजीन होती है, 4 मिनट फ्यू सेकंड, तो आपका टेक का मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 मिनट हो सकता है। और उसके बाद 1000 फीट की जो मैगजीन होती है उसमें आपका ड्यूरेशन बढ़ सकता है। तो कुछ एक लोग जो लंबे लंबे टेक्स लेते थे वो अपना 1000 फीट की मैगजीन स्पेशली जो है बनाई जाती थी उस जमाने के। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन का जो चक्कर है उसका मतलब ये है। आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिजिटल है, हार्ड डिस्क है, बटन दबा दो, गाँव चले जाओ, एक हफ्ते बाद आओ, कैमरा में भी चलता हुआ मिलेगा। स्टीवन ज़ाबो नहीं है, निकोलस यांचो है, सीरी मंजिल भी नहीं है, स्टीवन गाल भी नहीं है। क्वेश्चन जो था उसके अंदर 3 नाम दिए हुए थे जो लॉन्ग ड्यूरेशन टेक लेते हैं। एक आदमी ऐसा था जो नहीं। ध्यान से देखना जाके घर पे तो तुम्हें समझ आएगा, ठीक है। ये मैंने उसका उल्टा कर दिया। उल्टा क्या कर दिया, एक आदमी रख लिया, 3 लोग हटा दिए, 2 और लोग हटा दिया, 2 लोग और कौन है जाके जिसने कुछ मैंने इसलिए रखा तो पता ही है तुमको, टार्कोव्स्की नहीं है, देख क्या जवाब। थियो एंग्लोपोलस नाम लिख लो, ग्रीस का, जो लॉन्ग ड्यूरेशन टेक लिखता है, यहाँ मैंने बताया नहीं है और तुम्हारे पास भी टाइम नहीं मिलेगा, भूल भाल जाओगे। थियो एंग्लोपोलस ग्रीक का आदमी है जिसकी फिल्मों के अंदर लैंडस्केप इन द मेस्ट, इस टाइप की फिल्में बनाई हैं उसने, इटर्निटी एंड ए डे, उसकी फिल्मों में लॉन्ग ड्यूरेशन टेक्स होते हैं। उसका नाम लिख लो। चंतल लिकरमैन है उसके अंदर, दूसरा नाम, और तीसरा कौन है मुझे याद नहीं आ रहा ध्यान से। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाइए। ये वही वाली फिल्म आ गई, गुड बाय चिल्ड्रन और रवाल लेगेफोन, इसका ओरिजिनल नाम है। और ये किसने डायरेक्ट किया है, नन ऑफ दीज अबव। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्टर है लुई माल। ये रटा होना चाहिए तोते की तरह, तोते की तरह रटा होना चाहिए, वहां जाके उधर दीवार देखते हुए नजर आओगे। जॉक रिबेथ नहीं है, जॉयक बिनी नहीं है, लुक ब्रेसो नहीं है, ठीक है जी। तीनों में से कोई आदमी नहीं है, लुई माल है इसका। चेक भी कर लेना 55 का पीछे जाके। कंटेम्प्ट बाय जॉन गोदार्ड इज बेस्ड ऑन द नॉवल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोरावियो के नॉवल के ऊपर बेस्ड है, सब बड़े लोग हैं, गैब्रियल गार्सिया मार्केस, पाब्लो नेरूदा, ये सब बड़े लोग हैं। अल्बर्टो मोरावियो के नॉवल के ऊपर बेस्ड है। ये क्वेश्चन आ सकता है खास तौर पे क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर जो है इसका जो एक्टर है वो ही पास्ड अवे लास्ट ईयर, मतलब जब कोविड चल रहा था लास्ट ईयर जो है, उसमें जो है वो ही पास्ड अवे। तो बिकॉज ऑफ दैट दिस क्वेश्चन बिकम इम्पोर्टेंट। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें चक्करबाजी है। गोदार्ड ने फ्रेंच डायरेक्टर है, तो इसमें एक सेटअप जो है इटालियन सिनेमा हॉल, इटालियन थिएटर क्या बोलते हैं, स्टूडियो के अंदर फिल्म सेट है। फिर एक जर्मन डायरेक्टर फ्रिट्ज लैंग जो है, जिसने एम नाम की बड़ी फेमस फिल्म डायरेक्ट की है, वो उसने काम किया है इसके अंदर। फिर फ्रांस की सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट्रेस ब्रिजिट बार्डो, जो लव अफेयर का चक्कर था उसका, जो मैंने बताया, उसकी वाइफ थी कौन, रोजा की, शी एक्टेड इन दिस फिल्म। तो इसमें ब्रिजिट बार्डो है इसमें। और वो जो एक्टर है जो हु पास्ड अवे इज कॉल्ड मिशेल पिकोली। उसका नाम थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ा याद कर लेना, टेढ़ा मेढ़ा स्पेलिंग है वो। मिशेल MICHEL PICCOLI, मिशेल पिकोली। मिशेल पिकोली जो है उसके अंदर लीड एक्टर है, तो थोड़ा याद करना पड़ेगा ये नाम। ही पास्ड अवे लास्ट ईयर, तो वो उसके इसलिए कंटेम्प्ट बार बार मैं बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फिल्म है। जर्मन डायरेक्टर है वो, क्या नाम बताया मैंने अभी आप लोगों को। और सबसे बड़ी बात क्या है इसके अंदर, कार्लो पोंटी ने प्रोड्यूस किए। कार्लो पोंटी जो सोफिया लॉरेन का हस्बैंड है, उसने प्रोड्यूस किया। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके अंदर, इसलिए क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। हाँ जी, कंटेम्प्ट बाय जॉन गोदार्ड हो गया। कार्लो पोंटी वाज फेमस प्रोड्यूसर। ये क्वेश्चन आ गया, देखो नीचे 57 पे मैंने उसी के नीचे रखा है इस क्वेश्चन को। उस टाइम में मुझे याद था, इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया। कोई कहेगा सर हम तो ऐसे तो याद ही करते फिरेंगे उठपटांग के प्रोड्यूसरों के नाम, पता नहीं कितने हजारों प्रोड्यूसर है दुनिया के अंदर, हजारों प्रोड्यूसर तो है, बट वो सब हजारों प्रोड्यूसर सोफिया लॉरेन के हस्बैंड है, ध्यान रखना। बहुत सारे उठपटांग के प्रोड्यूसर है, इनके पास
So we wrap up for today. You can mark your attendance if you wish to. And as I said, that these questions need to be revised again and again. So tomorrow I'll pick up 2 more people from the painters list, because I have a feeling that they would definitely ask one international painter. Indian लोग आप थोड़ा करते रहिए, इंटरनेशनल लोग मैं निपटाने में लगा हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल में भीड़ भड़का बहुत है, 100 के करीब लोग हैं, फिर भी मैंने काफी कुछ कवर कर दिया. हाँ जी नितिन, पूछना चाहते हैं आप कुछ? Yes sir, वो quote वो first वाले वीडियो में जो था क्या from some no you that the quote was not mentioned there. You said that in the class you said you'll send the quote later, so if you have that quote, can you have it? नहीं, कौन सा कोड की बात कर रहे हैं? In the first video there was a point where some lady, I could not catch the name also, the voice was not clear, so she made some quote on cinema. Very आंद्रे important बज़ार quote. के ऊपर also. कोट है वो, आंद्रे बज़ार का कोट किया हुआ है कंटेम्प्ट की ओपनिंग सीक्वेंस के अंदर, उसकी बात कर रहे हो तुम? No sir. फिर कैसे कौन सा पता लगे? ऐसे नहीं पता लगेगा आपको. Sir, I'll pick that movement from the recording. I'll send it to you. ठीक है, कोई चलिए. Okay sir. ओके गाइस, सो आप लोग एक्टिंग के जो लोग बैठे हुए हैं 2-4 यहाँ पर, उनको असाइनमेंट भेजा गया हुआ है, और टुडे देयर इज नो क्लास, बट स्टिल यू नीड टू गेट इनटू द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग. और 4:30 बजे तक जो लिख के भेज देगा उसका आंसर वो वहाँ पे डिस्कस हो जाएगा, जो नहीं भेजेगा उसका नहीं डिस्कस. Thank you sir.